ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ Okay. शुक्र मौका ताकि हमने गुजरन कर सकते में हाजिर हो सके बाप इसके लिए शुक्र अदा करते हैं पूरे के नाम पे हम मौजूदा खुदा के हम पर लग चुका है बाप जब हम पेश करते हैं पाकलाम से पढ़ते हैं सुनते हैं बाप हमारे लिए वैसे बरकत हो हमारे साथ आपको दुखुल जमाने पहुंचे हैं बाप हमारी पेश का तरीका आपको पसंद है बाप हमारी पेश की वर्ड तक लग जाए बाप पाकलाम में जो भी पढ़ते हैं बाप सुनते हैं हमारे वैसे बरकत हो बाप अगर पाकलाम के सारे भेद हमारे पर खुले हैं बाप हम पाकलाम के एक लफ्ज को समझ सके हम दुआ करते हैं बाप हमारे दुआ तो पूर्ण कोई रुकावट ना है कोई बंदिश ना है बाप शायद आपको जो पहुंचे मैं शायद दुआ का बजट से जवाब मिले बाप ऐसे भी कुछ मांग लेते हैं आपके बड़े मसीह के नाम से आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड हाँ जी मैं एक वर्स पढ़ूंगी हे सब धरती परमेश्वर दी जय जयकार कर ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਮਹਾਨ ਹਨ ਤੇਰੇ ਅਸੀਮ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ Sister Maya ji. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड आमीन 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Sister G. Praise the Lord.
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ ਜ਼ਬੂਰ 66 ਦੀ। ਸਭ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਮਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ, ਓਹੋ ਜਲਾਣੀ ਟਾਰਚ ਸੀ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਂਗ ਬਖੂਰ ਦੇ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਾ ਦੁਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਗਾਬਾਨ ਬਿਠਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਦੀ ਤੇ ਮਾਇਲ, ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਦੀ ਤੇ ਮਾਇਲ, ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ, ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਿਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚਮਕਾਵੇ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੰਮੀ ਜੀ। Okay, I think you're busy. Praise Lord, praise Lord. आगे praise the Lord. Yes, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇਰਾ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਗੀਤ ਬੋਲੀਏ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗੀ ਬਣਾ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ। ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਦਾਸੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਦਾਸੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you ਮੰਮੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। praise the Lord, praise the Lord। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ।
Hallelujah, Lord. Praise the 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 Lord. Thank you, Jesus. 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 Lord, खुदावन तेरी तारीफ हो, Lord Jesus. तेरा धन्यवाद है, Lord Jesus, दे दिन वास्ते खुदावन, तेरी हजूरी वास्ते खुदावन, Lord. तेरा धन्यवाद है, Lord Jesus, खुदावन, तेरे हर एक खुदावन हर एक समय च खुदावन तुसां संभाल के रखिया, Lord Jesus, हर एक साह वास्ते खुदावन तेरा धन्यवाद, Lord Jesus, हालेलुया। खुदावन Lord Jesus, खुदावन तू सानू खुदावन पुरानी जिंदगी चो काट के खुदावन साडी अच्छी जिंदगी दित्ती, खुदावन तेरा धन्यवाद लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, खुदावन तेरे वचन च लिखे जिथे 2 या 3 में ना ते इकट्ठे होणगे उत्थे मेरी हजूरी होवेगी, उत्थे मेरी मौजूदगी होवेगी। खुदावन तेरी हजूरी तेरी मौजूदगी साडे विचकार है, लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Shinde boro 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 siri biri gara bara 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 bara. Sharabra sharabra sharabra. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. खुदावन तेरे प्यार वास्ते, खुदावन तेरा धन्यवाद है, Lord Jesus. खुदावन तेरे प्यार वास्ते, तेरी मोहब्बत वास्ते खुदावन तेरा धन्यवाद, लॉर्ड जीसस। तू साडे वास्ते जेड़ा पवित्र लहू बहा दिता, खुदावन तेरा धन्यवाद, लॉर्ड जीसस। खुदावन हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। खुदावन साडी गंदियां सोचा करके खुदावन तेरे सिर ते कंडिया ताज रखिया गया, लॉर्ड जीसस। तेरा धन्यवाद खुदावन, खुदावन तेरा धन्यवाद हो, लॉर्ड जीसस। साडे गुनाहां करके खुदावन तू कोड़े खाते हो, लॉर्ड जीसस। तेरा धन्यवाद खुदावन, ओ लॉर्ड जीसस। खुदावन साडे गुनाहां करके खुदावन तेरे पवित्र लहू बहाया गया, लॉर्ड जीसस। तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, लॉर्ड। हालेलुया। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਲॉर्ड जीसस ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਲॉर्ड जीसस ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲॉर्ड जीसस। ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, लॉर्ड जीसस। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬੁਰਾ ਦੇਖਿਆ, लॉर्ड जीसस, ਜੋ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਖੁਦਾਵੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸੁਣਿਆ, लॉर्ड जीसस, ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, लॉर्ड जीसस। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰ, लॉर्ड जीसस। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰ, लॉर्ड जीसस। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ लॉर्ड जीसस। ਖੁਦਾਵੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, लॉर्ड जीसस, ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਖੁਦਾਵੰ ਉਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, लॉर्ड जीसस। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, लॉर्ड जीसस। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ लॉर्ड जीसस, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਬਚਨ ਪੜੀਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਖੁਦਾਵੰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, लॉर्ड जीसस। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदावन तेरा अज दा कलाम खुदावन साडे दिल दी गहराइयां च जाके डिगियो, लॉर्ड जीसस, जो अच्छा फल लेके आवे, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, सगों 100 गुना फल लेके आने वाले होइए, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस। खुदावन तू साडे हर एक ना खुदावन गल करना, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस। खुदावन तेरी तारीफ होवे, खुदावन तेरे नाम नु बढ़ाई मेरे, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन लॉर्ड जीसस सिस्टर खुदावन ते लहू च छुपा देने, लॉर्ड जीसस। खुदावन जो भी कलाम बोलन खुदावन वो अपने को नहीं सको तेरे बलो खुदावन तेरा पाक रूह खुदावन उन्हां नु गाइड करियो, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन ओ नहीं सको तेरा पाक रूह बिजदी होके साडे नाल गलबात करियो, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन सारी मीटिंग नु खुदावन तेरे हत्थां विच सौंप दिंदे आ खुदावन, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ खुदावन पा लिया, लॉर्ड जीसस। तेरे प्यारे ते पवित्र नाम च मंग लैंदे आ, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सोनिया। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद इसी तरह अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद का हाथ हमेशा आपके ऊपर बड़ा रहे। खुदावंद आपको पाक दामन कमवारी की माने तैयार करे। आप इस ग्रुप के लिए, अपनी फैमिली के लिए बाइस से बरकत बनती रहे। खुदावंद आपके जरिए बहुत सी रूहों को बचाए और खुदावंद अपने परों में छुपा के रखे, अपने साए तले रखे, यीशु के नाम से। हम प्रस्तिश के लिए भी खुदा उनका शुक्र करते हैं और हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे, तेल के लिए। हालेलुया जीसस। ओ रे शेरे कत्रिया रे बे शेरे बेरे बेरे। और
रबा रबा सिया रबा शिक्रिया कातरिया रबे सिया रबा शिया। हालेलुया हालेलुया। खुदाऊं तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदाऊं तेरे नाम के लिए, तेरे लहू के लिए। खुदाउंद हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाउंद आज तेरे लहू के वसीला से हमें निजात मिल जाती है, हमें मुक्ति मिल जाती है, हमें वो कुर्बानियां नहीं देनी पड़ती, हमें दूसरी कौमों की तरह खुदाउंद घुटने टेक टेक के और खुदा लेट लेट के जो वो अपने खुदाओं के सामने कुर्बानियां देते हैं, उनको खुश करने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं। खुदाउंद वो सारा कुछ तूने हमारे लिए कर दिया, वो सारी कुर्बानियां जो हमने चढ़ानी थी खुदाउन तूने यस्सु वो हमारी खातिर चढ़ा दी हैं। खुदाउन यस्सु हम तेरा शुक्र करते हैं, हम गैर कौमों की तरह खुदाउन खुदा उन गूंगे बुतों के पास और खुदा जो बोलते नहीं, जो सुनते नहीं, खुदाउंद उनके पास नहीं, हम जिंदा खुदा के पास जाते हैं जो खुदाउंद हमारी आवाज सुनता है, जो हमें आजाद करता है, जो हमें बहाल करता है, जो हमें सारे गुनाहों से निजात देने की कुव्वत और कुदरत रखता है, जो खुदावंद खुदा जिंदा खुदा है। और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी यीशु कुर्बानी के लिए खुदावंद, जिसके वसीला से खुदावंद आज हम दिलेरी से खुदावंद बाप को अपना बाप कह के बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, उसके तख्त के सामने दिलेरी के साथ खड़े हो सकते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदाम तेरी तारीफ हो, खुदाम खुदा हम अपने आप को यस्सु तेरे लहू में छुपाते हैं। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो सुनेंगे खुदा उन सबको यस्सु में तेरे लहू में छुपाती हूँ। हम खुदा तेरे सामने इकरार करते हैं, जो भी हमने गुनाह की, खताएं की, तुझे नाराज किया, तुझे दुख दिया अपने गंदे बिहेवियर से, झूठ बोलने से, गुस्सा करने से, बदगोइयां करने से, किसी भी तरीके से खुदा हरामकारियां करने से, जनाकारियां करने से खुदा तुझे दुख दिया, तुझे नाराज किया, तुझसे दूर हुए खुदा यस्सु के नाम से आज मैं एक एक को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपा देती हूँ, तेरे लहू से धो के पाक और साफ कर देती हूँ, ताकि खुदा जब हम इस रोटी को लें, इस पानी को लें, तो खुदावंद हमारे अंदर से वो सारी गंदगी, नापाकी, गलाजत, वो सारी बीमारियां, वो सारी जंजीरें खुदावंद खुदा हम आजाद हों, बहाल हों, खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान खुदावंद हमारी जिंदगियों में आ जाए। खुदावंद जहाँ कहीं भी खुदावंद खुदा हम फंसे हुए हैं, खुदावंद हमें जकड़ा हुआ है इब्लीस ने, हमारी सोचों को खुदावंद, हमारे रूह बदन जान को कहीं पे भी वो दुख दे रहा है, वो दर्द दे रहा है, कहीं हम किसी को माफ नहीं कर सक रहे, हमारे अंदर किसी के लिए कड़वाहट है, गुस्सा है, नाराजगी है, जेलसी है, खुदा यस्सु के नाम से वो जड़ से सारे ये कड़वे बीज इब्लीस ने खुदा हमारे दिलों में बोए हुए, हमारी सोचों में खुदा यस्सु के नाम से वो सारे कड़वे बीज खुदा हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए खुदा कट जाए, उनका कोई नामो निशान हमारी जिंदगियों में ना रहे। खुदा हमारे अंदर मोहब्बत आ जाए, प्यार आ जाए, एक दूसरों के लिए वो दर्द आ जाए, खुदा वो रहम आ जाए, वो तरस आ जाए, खुदा जो तेरे अंदर है, खुदा वो जो तेरा मिजाज है, खुदा वो हमारे अंदर आ जाए। कहीं हम किसी बीमारी में फंसे हुए, कहीं हमारे कोई लिवर में प्रॉब्लम है, खुदा मैदे में प्रॉब्लम है, चेस्ट में प्रॉब्लम है, कहीं दर्दों की जो स्पिरिट है हमारे अंदर काम कर रही है, यीशु के नाम से आज वो हमारे अंदर से, हमारे बदन के अंदर से, हमारे किसी के कोई घुटनों में दर्द है खुदा कमर में दर्द है खुदा यीशु के नाम से खुदा शोल्डर में पेन है खुदा बाजू में दर्द है, हाथों में दर्द है खुदा किसी तरीके से, किसी भी वजह से, उस वजह को यीशु के नाम से खुदा इस बदनों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से खुदा। ये तेरे खून से खरीदे हुए बदन हैं, इन बदनों के ऊपर प्लीज का कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमारे बदनों को इस्तेमाल करे, हमारे बदनों को उस के असर में रहने दे। यीशु के नाम से आज बहाली है, आजादी है, मुकम्मल शिफा हमारे बदनों के अंदर, रूह बदन जान में दौड़ जाए यीशु के नाम से खुदा कहीं हमारे अंदर कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन की स्पिरिट काम कर रही है, यीशु के नाम से आज उस डिप्रेशन की स्पिरिट को खुदा यीशु के नाम से उसके हाथों और पाँव में बेड़ियां पहनाती हूँ और यीशु के नाम से उसको अपने बदनों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। खुदा तेरी तसल्ली, तेरा इत्मीनान खुदा एक एक के लिए मांग लेती हूँ यीशु के नाम से खुदा अपने घरों को
अपने फाइनेंस को, अपने बच्चों को, एक एक चीज को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदा तेरा पहरा लगा देती हूँ यीशु के नाम से। एक एक चीज के ऊपर खुदा तेरा खुदा लहू लगा देती हूँ, ताकि कोई भी शैतानी असर जो है, जो भी शैतान ने हमारे खिलाफ लिखा है, पढ़ा है, बोला है, चिल्ले चढ़ाए हैं, जो भी जादू टोना तवीज धागा कुछ भी उसने हमारे खिलाफ किया, हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारे शौहर के खिलाफ, हमारी बीवी के खिलाफ, हमारे बहन भाइयों के खिलाफ, उसके सारे असर को, उसके सारे लिंक को तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से। उसका कोई असर हमारे घरों पे, हमारी फैमिलियों पे रहने ना पाए यीशु के नाम से। खुदा उसके सारे असर को कैंसल कर देती हूँ। और खुदा तेरी आजादी, तेरी बहाली, तेरी मुकम्मल शिफा, तेरी इलाही शिफा यीशु के नाम से हमारे बदनों के अंदर दौड़ जाए, हमारी नस नस को, रग रग को खुदा यीशु तेरे लहू से धो के पाक और साफ कर देती हूँ। हमारे रूह बदन और जान में खुदा तेरी ताजगी आ जाए, खुदा तेरी दिलेरी आ जाए, खुदा हमारे तेरी शिफा आ जाए खुदा यीशु के नाम से। हम खुदा पहले जैसे ना रहे। जब हम इस पानी को लें जो कि तेरा लहू है, जब इस रोटी को लें जो कि तेरा बदन है, जो तूने हमारी खातिर तोड़ा है, यीशु के नाम से खुदा जब हमारे ये बदनों के अंदर जाए, जब हमारे ये खुदा हम इसको लें, तो खुदा हमारे अंदर से खुदा जहाँ कहीं इब्लीस की जड़ें हैं, उसने किसी भी सूरत में हमारे बदनों के अंदर, हमारे बदनों को उसने कैद किया हुआ है, यीशु के नाम से जड़ों से खेड़ के फेंक देती हूँ खुदा। उसका कोई असर हमारे बदनों के अंदर रहने ना पाए खुदा यीशु के नाम से। तेरे लहू के वसीला से आज खुदा उस हीलिंग को हम महसूस करें, हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से खुदा। अब आप खुदा तेरे बेटे के लहू बहाने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और आज खुदा एक एक की जिंदगी में खुदा वो तेरी पाक पवित्र खुदा जो तेरी कामिल मर्जी है हमारे जिंदगियों में पूरी खुदा, जिस तरह यीशु ने तेरी कामिल मर्जी को पूरा किया खुदा, उसी तौर से हम तेरी उस कामिल मर्जी को पूरा करें जो तूने काम हमारे जिम्मे लगाए हैं, जिस काम के लिए तूने जमीन पे हमें भेजा कि हम शैतान को अपने पांव तले कुचल के फतह पा के तेरे तख्त के ऊपर बैठ सके खुदा। वो रसाई जो है हमारी हो जाए खुदा, आज उसी इख्तियार को खुदा इस्तेमाल करते हुए इब्लीस के सर को यीशु के नाम से अपने पांव तले कुचलते हैं। और खुदा फतह याब हो के, गलबा पा के हम खुदा उस जगह तक पहुंच सके, उन रस्तों पे चल सके खुदा। मैं एक एक के चुगिर्द वो खुदा तेरे फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ जो हमें अरेस्ट करके रखें, हम ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि खुदा तेरे हुक्मों पे अमल करते हुए, तेरी फर्मा बरदारी में, तेरी ताबेदारी में चलते हुए खुदा यीशु के नाम से उस जगह तक पहुंचे, उस ताज को हासिल कर सके खुदा जो तूने हमारे लिए रखा है यीशु के नाम से। खुदा इस दुआ को हम सब बहन भाई मिल के बड़े ईमान से, बड़े भरोसे से, तवक्कल से, हमारा ईमान है कि जो भी एक एक लफ्ज हमने मांगा है तुझसे खुदा तूने हमें दे दिया, क्योंकि हमने तेरी कामिल मर्जी के मुताबिक दुआ की है खुदा, कि तू यही हमारी जिंदगियों से, हमारे बदनों से चाहता है कि तेरा नाम हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से ऊंचा हो, तेरे नाम को जलाल मिलता रहे और दुश्मन हमारी जिंदगियों से शर्मिंदा होता रहे, वो कुड़ता रहे, उसको आग लगती रहे और उसको कहीं पे भी हमारे घरों में, हमारे बदन के अंदर उसको जगह ना मिले, कहीं कोई सुराख ना मिले। मैं उन सारे दरवाजों को बंद कर देती हूँ, उन सारे खिड़कियों, दरवाजों को, सुराखों को यीशु तेरे लहू से बंद कर देती हूँ, सील कर देती हूँ, उसको खोलने ना पाए यीशु के नाम से खुदा। इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आप ईमान से इस पानी को पिए और इस रोटी को खाएं, और किसी ने तेल रखा हुआ है वो जरूर, जहाँ कहीं आपके कोई बीमारी है, कोई दर्द है, उस ऑयल को लगाएं ईमान के साथ। वो खुदा यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो गया है। प्रेज गॉड। ओके जी, हालेलुया, प्रेज गॉड। उनका शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें इकट्ठा किया, फिर से उसके कलाम में से
जो आज खुदावंद हमसे बात करना चाहता है वो आज हम सीखें। और हम काशफा रेवलेशन की बुक उसका 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल उस दिन हमने मेरा ख्याल पहली और दूसरी आयत पे बात की थी। आज हम आगे देखेंगे मेरा ख्याल तीसरी, चौथी और पांचवी, छठी आयत। मेरा ख्याल आज फिर हम इतना ही कर सकेंगे। तो हमारे साथ रेटिंग में वफा और अंजना है मेरा ख्याल, है ना? हाँ जी, मैं कर ओके, ठीक है जी। हाँ जी, मेरा चैप्टर ख्याल बाजी। चैप्टर 8 है, 8वां चैप्टर है मुकाशफा की किताब, 8 चैप्टर। और उसकी आप पहली आयत से ही मैं 6 आयत या 7 आयत तक पढ़ लें, हो सकता है हम 7 आयत कर लें। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। ਜਾਂ 7ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਉਸਨੇ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਚਾਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਧੁਰੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਆਇਆ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਕੁਝ ਅੱਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7 ਧੁਰੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਧੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਗੜੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ 1/3 ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ 1/3 ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਹਰਾ ਘਾਹ ਸੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਧੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ 1/3 ਲਹੂ ਬਣ ਗਈ। ਆਮੀਨ। Praise the Lord. Praise the Lord. जी श्रेया, आप पढ़ेंगे? तीसरी आयत से हाँ, चलिए तीसरी आयत से आप पढ़ लें, 7 आयत तक पढ़े। ओके। फिर एक और फरिश्ता सोने का सूज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उसको सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। और फरिश्ता ने ऊद सूज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी और गरजे और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। और वह 7 फरिश्ते जिनके पास वह 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और तिहाई जमीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया और तिहाई समंदर खून हो गया। आमीन। हाँ जी, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमने जब ये 8वां चैप्टर यानी शुरू किया, ये तो हमने सीखा कि ये 7वीं मोहर जो है वो खुली है इस वक्त। और हमने थोड़ा सीखा था कि खामोशी क्यों हुई थी, क्योंकि खुदावन का दिन जो था या खुदावन जो है वो आ रहा है, बादशाह आ रहा है। तो खामोशी जो है उसकी कह लें कि एक रोब और दबदबे या उसकी ताजीम में या उसका जो डर और खौफ है, क्योंकि अब क्या है, ये अदालत का वक्त है। जो मतलब कौमें जमीन पे रह गई थी। और हमें ये भी सीखा कि ये 3.5 साल का जो अरसा था, दूसरा हिस्सा ये निकालें 7 साल का, हमने सीखा था कि पीरियड जो है जिसमें पहले 3.5 साल में मसीहियों पे जुल्म और सितम करेगा जो
اینٹی کرائسٹ ہے جو مخالف مسیح ہے، اور جو دوسرا حصہ جب 7ویں مہر کھلے گی یہ تب جو ہے یہ شروع ہوا ہے، اور اب جو ہے اب خداوند کا جو دن ہے وہ آ گیا ہے، روز عظیم اس کو کہا گیا، ہم نے کافی ورسز سے سیکھا کہ یہ خداوند کا دن جو ہے یعنی شروع ہوا، اور خداوند کے سامنے جو ہے کیا زمین اور آسمان جیسے کہنے خاموش ہو گئے، یعنی اوپر جو تھے یعنی وہ 24 بزرگ اور وہ چاروں جاندار جو تھے اور فرشتے جو تھے اس وقت خاموش ہو گئے، کیونکہ جب 7ویں مہر کھلی تو کہہ لیں تب ہی یعنی سب کو وہاں پہ پتا چلا، یعنی خداوند کو تو پہلے ہی پتا تھا کون سی سزائیں ہیں، لیکن یہ سیل جو تھی 7ویں سیل جو تھی جو مہر تھی وہ کھلی، تو تب باقی جو وہاں پہ یعنی وہ بزرگ تھے اور ان کو جب پتا چلا کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ اب زمین کے رہنے والوں پہ آئیں گی، تو اس کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکیں، اور خداوند کا جو دن تھا وہ آ گیا تھا، یعنی خداوند نے اب ان کو سزائیں دینی تھی، اور جیسے کہہ لیں جو نیچے زمین پہ رہنے والی قومیں ہیں ان کی عدالت جو ہے، ان کے گناہوں کی جو سزا ہے، جو زمین پہ ایک تو عدالت ہوئے گی، ایک تو ظاہر ہے جو ان کی ابدی جگہ ہوگی وہ تو جہنم ہوگا، لیکن زمین پہ بھی ان کی یہ جو عدالت ہے یہ ہوگی، اور ان کے گناہوں کی سزا جو ہے ان کو ملے گی۔ تو یہ وہ دن جو ہے وہ خداوند کا جو دن ہے یا روز عظیم ہم نے پڑھا کہ وہ جو تھا وہ آ گیا تھا، اور اب جب وہ ساری سزائیں جن کا جو سیل میں بند تھیں اس کو کھولا گیا تو خاموشی جو تھی وہاں پہ ہو گئی، اور خداوند کی جیسے ہم نے سیکھا کہ وہ جب ایوب جو تھا اس نے کیا کیا، اپنا منہ بند کر لیا کیونکہ اس نے غلط بولا تھا، ہے نا، تو اسی لیے یہاں پہ بھی جو گناہ گار تھے ان کی عدالت ہونے والی تھی، تو آسمان پہ کہہ لیں یا زمین پہ خاموشی جو تھی وہ ہو گئی تھی خداوند کی تعظیم کے لیے یا عزت کے لیے یا اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے، ہے نا، تو اس لیے یہ آدھے گھنٹے کی جو خاموشی ہوئی تھی یہ اس کے یہ میننگ ہے۔ پھر ہم نے سیکھا تھا کہ نرسنگا کب کب پھونکا جاتا تھا، اور کہ خوشی کے وقت جب اور نگہبان جو تھے وہ جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی فوج جو ہے کسی ملک پہ یعنی یا اسرائیل پہ کہہ لیں حملہ کرنے کے لیے آنے والی ہوتی تھی، تو وہ نگہبان جو ہوتا تھا، جو واچر ہوتا تھا، وہ نرسنگا بجایا کرتا تھا اپنے قوم کو الرٹ کرنے کے لیے، ہے نا۔ پھر جب جنگ کے لیے نکلتے تھے ایک تو الرٹ کرنے کے لیے نرسنگا پھونکا جاتا تھا، اور پھر جب جنگ کے لیے جو کہہ لیں دستہ بندی ہوتی تھی اس وقت بھی نرسنگا پھونکا جاتا تھا۔ پھر خوشی کے وقت بھی جب کہہ لیں پرستش کرتے تھے تب بھی خداوند کی حمد و ثنا کرتے تھے تب بھی خوشی سے نرسنگا جو تھا وہ پھونکا جاتا تھا، ہے نا، اور یہ ہم نے حوالوں کے ساتھ سیکھا تھا۔ تو اس لیے نرسنگا اس لیے بھی یہاں پہ جیسے کہہ لیں جو 7 نرسنگے ہیں یہ دنیا پہ یعنی جو زمین کے رہنے والے ہیں ان کے اوپر جو آفتیں جو ہیں یا سزائیں جو ہیں آنی ہیں، تو اس لیے خداوند کے سامنے جو فرشتے جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، تو خداوند نے جس سے جیسے پہلا نرسنگا یا دوسرا نرسنگا پھونکا جائے گا اس طرح سے جیسے ہم نے گھوڑوں کا سیکھا تھا کہ جیسے جیسے وہ گھوڑا آ رہا ہے اس طرح زمین کے رہنے والوں کے اوپر آفتیں یا مصیبتیں جو تھی وہ آ رہی تھی، اسی طرح جیسے جیسے کیونکہ یہ عدالت کے لیے جیسے کہہ لیں نرسنگے جو ہیں وہ پھونکے جا رہے ہیں زمین کے رہنے والوں کے اوپر، تو ان کی جو سزائیں ہیں آنی ہے زمین پہ، تو ویسے ویسے جیسے کہہ لیں پہلے جو ہے نرسنگا پھونکا گیا تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اولے پڑے آگ سے، تو اسی طرح جو 7 نرسنگے تھے جب پھونکے گئے تو جو سزائیں تھی زمین کے رہنے والوں پہ وہ آئیں، ہے نا، تو یہ ہم نے تھوڑا سیکھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو تیسری آیت ہے
جس میں لکھا ہے کہ جو فرشتہ ہے جو عود سوز یعنی جو وہاں پہ بخور جلایا جاتا تھا، یہ جو قربان گاہ کے بیدی جو تھی، جو پردے کے آگے تھی، یعنی تخت کے آگے جو بیدی تھی، یہ باہر والی جو قربان گاہ ہے جہاں پہ قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، یہ جیسے بکرے یا کچھ بھی یا کھانے پینے کا بھی، اسرائیلی قوم جو تھی وہ جب قربانی کے لیے لے کے آتے تھے چڑھانے کے لیے، تو وہ یہاں پہ باہر جو بیدی بنی ہوئی تھی وہاں پہ جلائے جاتے تھے، تو اور یہاں سے ہی کولے لے کے یا آگ لے کے جو سردار کاہن ہوتا تھا وہ اندر جو بیدی، یہ دیکھیں آگ جو یا جو بھی ان کے قربانیاں ہوتی تھی وہ یہاں پہ جلائی جاتی تھی، ہے نا؟ تو جو یہ سین میں ہوتی تھی یہ قربان گاہ جو ہے، یہ دیکھیں جو سین ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہے نا؟ اس کو سینی اردو میں تو سین کہتے ہیں، پنجابی میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، انجنا کیا بولتے ہیں پنجابی میں؟ ہم تو سین بولتے ہیں، یہ جو نظر آ رہا ہے جہاں پہ یہ قربان کا بنی ہوئی ہے، بیدی بنی ہوئی ہے، ویڑا ویڑا، ہاں میرا ویڑا، خیال ہے ہاں جی ویڑا، ویڑا ہاں جی تھینک یو جی۔ تو یہ ویڑا جو تھا یہاں پہ یہ قربان گاہ بنی تھی، لیکن دوسری جو قربان گاہ تھی جہاں پہ بخور جلایا جاتا تھا، یہ دیکھیں یہ جو سردار کاہن ہے وہ اس طرح آگ جو ہے کچھ اس میں ڈال کے لے کے جایا کرتا تھا، اور یہ جہاں بیدی جو پردے کے آگے بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بیدی چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، آپ کو گولڈن سی نظر آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پہ یہ آگ جلایا کرتا تھا، تو یہ بیدی جو تھی اصل میں یہ جہاں پہ بخور جلایا جاتا تھا، یہ اصل میں دعائیں جو اب ہم کرتے ہیں کہہ لیں اس کو پیش کرتی ہے، اس کی لکھا ہے کہ دھواں اٹھتا ہے اور خداوند جو ہے ہماری دعائیں جو ہیں یعنی ہماری دعائیں جو ہے خداوند کی حضوری میں خوشبو کی مانند پہنچتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ بخور جو تھا، جو کولے تھے وہ ڈالا جاتا تھا اور یہاں پہ جلایا جاتا تھا۔ یہ جو سردار کاہن جو ہے یہ روز جیسے کہہ لیں صبح کی قربانی اور شام کی قربانی، یعنی اسی لیے ہم جو دعائیں کرتے ہیں ہمیں جیسے کہہ لیں جس طرح وہ قربانیاں چڑھائے کرتے تھے اسرائیلی قوم، ہے نا؟ تو ہمیں بھی اس ٹائم پہ کہہ لیں دعائیں جو ہے کرنی چاہیے، یعنی صبح کی دعائیں، شام کو یا دوپہر کو کہہ لیں دعا جو ہے وہ ہماری یہ قربانیاں جو ہیں ہمیں چڑھانی چاہیے، تو یہ خوشبو جو ہے یہ خداوند تک جاتی ہے، یا یہ دھواں جو ہے یہ خداوند تک جاتا ہے، اور خداوند ہماری دعاؤں کے جواب دیتا ہے، خداوند ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا پھر یہاں پہ ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو فرشتہ ہے جب یہ بخور لے کے یا عود سوز لے کے، پنجابی میں کیا لکھا ہوا ہے انجنا؟ یہ عود سوز جو ہمارے اردو میں لکھا ہوا ہے جو وہ جلاتے تھے، ਕਿਹੜੀ بخور ਵਰਸ ਚ ਬਾਜੀ؟ تیسری ورس ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋਨੇ کا عود سوز لے کے گیا عود بہرحال اس کو ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲਈ ਜਗਵਤੀ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੂਪਦਾਨੀ। ਧੂਪਦਾਨੀ, ہاں جی، تو ਧੂਪਦਾਨੀ یہ ہے، یہ جو اس کے ہاتھ میں ہے نا، اس کے ਹਾਂਜੀ اندر وہ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ باہر سے ਧੂਪ ہاں ਪਾਈਦਾ ਬਾਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ। دھوپ ਹਾਂਜੀ پائیدا، ہاں جی، تو اس کے اندر وہ کولا بھی ڈالتے تھے، یا آگ جو باہر سے جلتا ہوا کولا یعنی وہ رکھتے تھے، یہ بجھا ہوا نہیں، یعنی جلتا جیسے آگ لگی ہوتی ہے کوئلے کو، تو وہ اس کے اندر رکھتے تھے، اور وہ بخور جیسا جو تھا، جو خوشبو وہ خروج کی کتاب میں ہم میرا خیال خروج کی ہی کتاب میں کہ وہ جو خوشبو بنانے کے لیے خاص جو خوشبو تھی وہ خداوند نے سارا مسالے جو اس میں ڈالتے تھے وہ خداوند نے بتایا تھا کہ یہ خوشبوئیں یا یہ مسالے جو ہے وہ ایک بناتے تھے خاص، اور خداوند نے منع کیا تھا کہ یہ یعنی کسی اور جگہ لگانے کے لیے یہ خوشبو جو ہے وہ نہ استعمال کی جائے، یہ خاص خداوند کی حضوری میں، یا یہ بیدی جو تھی قربان گاہ جو تھی یہاں پہ ہی جلانے کے لیے خداوند نے
हुक्म दिया था कि तुमने वो जो है मसाले जो है वो इसमें जलाने हैं, है ना? इस धूप दानी जो है। और ये सरदार काहिन जो है ये यहाँ पे जाके कुर्बानगाह के ऊपर इसको जलाया करता था। और ये अब जो है कह लें कि ये इस चीज़ को पेश करता है कि जो हम दुआएँ करते हैं। तो इस ये जो कुर्बानगाह है यहीं से कह लें ये खुदावंद के तख्त के सामने से कह लें ही हमारी दुआओं का जवाब मिलता है, या फिर जैसे कह लें कि यही हमें पाक करने वाली आग है, ये यहाँ पे जो है, और यही भस्म करने वाली आग है। जिस तरह के लिखा हुआ है ना कि खुदावंद जो है हमारी भस्म करने वाली आग है, यानी जलाने वाली आग है। या इस तरह कह लें कि जैसे हम उर्दू में इस तरह बोलते हैं कि हमारी सारी नाराज़गी को खुदावंद तेरी आग भस्म कर दे, यानी ख़त्म कर दे या जला दे। तो यही जो कुर्बान का है, इसी से हमारी दुआओं का जैसे कह लें जवाब मिलता है, या पाकीज़गी के लिए या जो कुछ कह लें हम गलत काम करते हैं या सज़ाएँ जो हैं या भस्म करने वाली आग भी यहीं बेदी से ही, ये वाली जो बेदी है यहाँ से मिलती है। और सॉरी वो मुझे हवाला मुझे याद नहीं रहा, जिसमें यसाया में अगर सुरैया या किसी को मिले, जिसमें यसाया में जब उसने कहा कि ऐ खुदावंद मैं तो नापाक हूँ, है ना? तो खुदावंद ने क्या किया था, उसकी ज़ुबान के ऊपर जलता हुआ कोला रखा था और उसकी ज़ुबान जो थी या उसके मुँह को उसने पाक किया था। और ये यहीं से जैसे कह लें कि इसी बेदी से लेके खुदावंद ने जलता हुआ कोला उसकी, ये रूहानी तौर पे बात हो रही है, यानी जैसे कह लें सच्ची-मुच्ची इसके ज़ुबान पे कोला नहीं था रखा, लेकिन इसका मतलब ये है कि यहीं से हम पाक होते हैं। जो आग है, वो ही पाकरू की आग जो है हमें पाक करती है, या हमारे अंदर गंदे काम हैं, गुनाह हैं, तो वो हमें यानी उस जो गुनाह है उसको ख़त्म करते हैं, या हमें जैसे कि लिखा हुआ है कि सोने की तरह ताता है, तो वो आग से ताया जाता है ना? तो अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ सफ़रिंग आती है, तो वो भी यहीं से आती है, खुदावंद निकालने के लिए, हमें पाक-साफ़ करने के लिए। ये बेदी जो है इसीलिए हमारी दुआएँ जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, जो हम करते हैं, है ना? मुक़द्दस लोग, खुदावंद के लोग जो हैं दुआएँ करते हैं। तो ये दुआएँ जो हैं ये बेदी जो है उस चीज़ को पेश करती है जो मुक़द्दस लोग दुआएँ करते हैं। तो इसीलिए खुदावंद हमारी जो एक जगह लिखा है कि जो हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक दुआएँ करते हैं। एक तो कुछ हम अपनी मर्ज़ी से ही दुआएँ करते रहते हैं। खुदावंद उनको भी कबूल कर देता है, है ना? जिस तरह हम कहें कि जिस तरह सारा ने अपनी मर्ज़ी की और अपनी जो लौंडी थी हाजरा, उससे उसको अब्राहम से कहा कि उसका बच्चा हो। लेकिन खुदावंद की कामिल मर्ज़ी क्या थी कि सारा से ही बच्चा पैदा होगा और खुदावंद उसको बरकत देगा। तो खुदावंद ने इस्माइल को भी बरकत दी, जो उसकी लौंडी हाजरा से पैदा हुआ। खुदावंद ने कहा मैं उसको भी बरकत दूँगा। तो इससे खुदावंद जो हम अपनी मर्ज़ी से दुआएँ करते हैं, खुदावंद वो भी सुन लेता है। लेकिन खुदावंद की कामिल मर्ज़ी ये है कि जो हम दुआएँ करें उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करें। जिस तरह इसहाक को खुदावंद ने बरकत दी और वो दुआ जो थी या खुदावंद ने जो इब्राहिम से वादा किया था, खुदावंद ने उसको पूरा किया, है ना? तो लेकिन खुदावंद जो है, हमारी दुआएँ जो हैं वो सुनता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि खुदावंद जो है अ ये दुआएँ जो थी, जो खुदावंद के तख्त तक पहुँची, उसकी तरह यानी जो मुकद्दसों की दुआएँ हैं, वो तख्त तक पहुँची। लेकिन वहाँ से क्या है, आग जो थी, वो ज़मीन पर डाल दी गई है 5वीं आयत में जो है। हम देखते हैं कि जो आग है, यानी हमने कहा कि जो भस्म करने वाली आग है, पाक आग भी वहीं से आती है, हमें पाक करने के लिए, लेकिन जो भस्म करने वाली आग है, वो भी वहीं से आती है। तो ये जो क्या थी, कुर्बानगाह से आग भरी हुई और ज़मीन पर डाल दी फरिश्ते ने,
ये अभी हमने जो देखी कि जो दुआएं की हुई थी इस कह लें कि इसराइली कौम के लिए अ, या सारी कौमों के लिए, तो खुदावन ने जो फरिश्ता था उसने वहां से आग लेके क्या किया, आग से भरी ऊद सोज जो थी वो जो ये तो उसको जमीन पे डाल दिया, यानी आग को जमीन पे डाल दिया, और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया, जलजला आ गया। क्योंकि ये हमने आवाजों के बारे में, गर्जों के बारे में पीछे सीखा था कि ये असल में खुदा की कुदरत को पेश करती हैं, या खुदा के जब वो कह लें बड़े अपने जैसे, क्योंकि अब कहर की तरह खुदावंद का कहर जो है वो जमीन के रहने वालों पर नाज़िल होगा, तो इसलिए वो ज़लज़ला आया, वो गरजें पैदा हुई, वो आवाज़ें जो थी वो आना शुरू हुई, और वो बिजलियाँ जो थी आई ज़मीन के रहने वालों के ऊपर, है ना? तो वो आग मिले हुए ओले जो थे, वो ज़मीन के रहने वालों के ऊपर उंडेले गए। तो ये दुआएँ जो हैं अम, अ जो खुदावंद के मुकद्दस लोगों ने, पाक लोगों ने, पवित्र लोगों ने इस कौम के लिए की हुई थी, ये उनका कह लें जवाब है। तो वो जवाब इस तरह है कि आगे चल के हम एक वर्स पढ़ेंगे। ये जो अ, ज़मीन पे डालने का मतलब है कि जो ज़मीन के रहने वाले थे, उनके निजात के लिए दुआएँ की गई थी। आसमान तक वो पहुँची तो सी, यानी इस बेदी तक वो दुआएँ पहुँची थी। जो खुदावंद के पाक लोग जो हैं, रास्तबाज़ लोग जो दुआएँ करते हैं, कह लें गैर कौमों के लिए, या अपने जो ऐसे बहन-भाई हैं, या माँ-बाप, या जिनके लिए भी हम दुआएँ करते हैं उनकी निजात के लिए, तो दुआएँ वो आसमान तक पहुँचती हैं। लेकिन चूँकि उनमें गुनाह का कोई एहसास नहीं होता, ये उन लोगों की बात हो रही है कि वो दुआएँ उनके लिए हो रही हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई एक तब्दीली नहीं आ रही, वो खुदा को किसी भी तरीके से कबूल नहीं कर रहे, गुनाह जो है उनकी ज़िंदगी से नहीं निकल रहा, ख़त्म नहीं कर रहे, वो किसी भी तरीके से खुदावंद का जो एक डर और खौफ है, या किसी भी तरीके से वो तौबा नहीं कर रहे। जो जिनके लिए खुदा के लोग जो हैं, मुकद्दस लोग जो हैं, दुआएँ करते हैं, हम शफ़ायत करते हैं अपने जैसे कह लें अज़ीज़ों के लिए, या कई दफ़ा हम गैर कौमों के लिए दुआएँ करते हैं। तो वो दुआएँ ऊपर आसमान तक पहुँचती हैं, तख़्त तक पहुँचती हैं, इस बेदी तक पहुँचती हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में से गुनाह का एहसास उनकी ज़िंदगियों में नहीं होता, तो फिर खुदावंद क्या क्या करेगा? उनकी अदालत करेगा। और जो ज़मीन के रहने वाले हैं, जो खुदावंद को हर तरीके से कोई भी मुसीबत आती है, तंगी आती है, तकलीफ आती है, जैसे हमने सीखा कि बीमारी आती है, उसमें हम तौबा करें ताकि निजात पाएँ, मुक्ति पाएँ। लेकिन ये वो लोग हैं इनके ऊपर जब मुसीबत आती है, तंगी आती है, तकलीफ आती है, किसी भी तरीके से, है ना? तो सताए जाते हैं, लेकिन ये फिर भी खुदा उनकी तरफ नहीं आते। कोई भी इनके अंदर एक जो एक एहसास होता है गुनाह का या तौबा करने का, वो बिल्कुल नहीं आता, ये डरते नहीं हैं खुदावंद से। तो फिर क्या है, खुदावंद इन जो हमने दुआएं की होती हैं, खुदावंद ये जो दुआएं हैं, या ये जो वो जमीन पे डाल देगा अदालत की सूरत में, या सजाओं की सूरत में, क्योंकि वो तब्दील नहीं हुए। तो फिर उनके ऊपर ये सजाएं जो हैं वो ज़मीन के रहने वालों के ऊपर आएँगी। एक हवाला हम पढ़ते हैं, खुदावंद ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह 7 बाब उसकी 16 आयत निकालना आप सुरैया और अंजना, कि हम तो दुआएँ करते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, बहन-भाई हैं, या गैर कौमों के लिए, जिस तरह जावेद आपको पता है, या और भी लोग जो मनादी करते हैं, बाहर जाते हैं रोड के ऊपर, है ना? तो उनके लिए दुआएँ करते हैं कि खुदावंद तो इनको बचा ले। लेकिन अगर उनके अंदर एहसास नहीं होगा गुनाह का, तो फिर उनको सज़ा मिलेगी। जी सुरैया, अंजना? बाजी केड़ा चैप्टर आ? 7? यिर्मयाह की क हाँ जी, 16 उसका क्या कहते हैं
16 आयत वर्ष है ना। हाँ जी हाँ हाँ जी। ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ नहीं सुनाऊंगा। हाँ जी सुरैया आप भी पढ़ें उर्दू में। ओके। बस तू उनके लिए दुआ ना करो, बस तू इनके लिए दुआ ना कर और इनके वास्ते आवाज बुलंद ना कर और मुझसे मिन्नत और शिफायत ना कर, क्योंकि मैं तेरी ना सुनूंगा। हाँ जी, तो ये वो लोग हैं जो जमीन पे उस वक्त रहने वाले होंगे, यानी इस कह लें ये जो जमीन पे जो वो डाला गया वो जो जलता हुआ कह लें कि आग जमीन पे जो थी वो डाली गई उस बेदी से, उसका ये मतलब है कि जो दुआएं जो थी सूज का हमने देखा कि क्या मतलब है, जो कुर्बान के ऊपर चढ़ाई जाती थी वो क्या है, दुआएं हैं, है ना, ये हमने यही सीखा। तो इसलिए ये जो कोले या वो जो खुशबू जलाई जाती थी वहां पे कह लें उसकी लुबान की, तो वो असल में क्या है, दुआएं हैं। तो खुदावंद ने कहा कि ये जो ऐसे लोगों के लिए हमने जो गुनाहगार लोग हैं उनके लिए दुआएं की हैं, लेकिन उनके अंदर कोई एहसास नहीं है, कोई उनके अंदर खुदावंद का एक जो डर और खौफ आता है वो नहीं आया। इसलिए खुदावंद क्या करे, फिर उन लोगों की अदालत करेगा, उन लोगों को फिर सजा देगा, क्योंकि खुदावंद ने उनको बड़े जैसे कह लें मौके दिए, बड़े खुदावंद ने उनके लिए, मैं कहूंगी जिस तरह जावेद का यार है कि वो जाता है, खुदावंद ने अपने खादमों को खड़ा किया, वो वहां पे क्या करते हैं, रोजे रख के खड़े होते हैं, दुआएं करते हैं उनके लिए कि खुदावंद तो इनको बचा ले, है ना, इनको भी अपने उसमें दाखिल कर ले बादशाही में। लेकिन वो क्या करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर जैसे कह लें उंगलियां ताने कसते हैं, गालियां देते हैं इनके सामने खड़े होके, और खुदावंद को भी कुछ लोग जो है इस तरह करते हैं, जीसस को, यस्सु को ताने देते हैं या गालियां निकालते हैं खड़े होके इनके सामने, और वो इनको बुरे-बुरे जैसे जो भी आपको पता ही होगा, है ना, हाथों के जो इशारे करते हैं, वो करके जाते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं, इनको बोलने नहीं देते। तो ऐसे लोगों के ऊपर फिर क्या होगी, अदालत आएगी। आज जो खुदावंद को रिजेक्ट कर रहे हैं, आज जो किसी भी तरीके से खुदावंद की आवाज को नहीं सुन रहे और गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन गुनाहगारों के ऊपर फिर जो सजा है वो आएगी। इसलिए वहां पे उस वक्त जो है, ये जो अभी हम जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं 8वां चैप्टर, उस वक्त हमने सीखा कि सिर्फ वो लोग होंगे जो मुकद्दस लोग हैं जिनके ऊपर मोहर लगी हुई है, जो खुदा की मोहर जिनके ऊपर लगी हुई है, यानी कि वो इसराइली जो 7वें चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो इसराइली हैं, यानी 12 कबीलों में से 12-12 हजार जो हैं वो चुने, सिर्फ वो मुकद्दस लोग उस वक्त जमीन पे होंगे और बाकी जो हैं वो गुनाहगार होंगे, जिनके ऊपर सजा का हुक्म जो है वो हो चुका है। क्योंकि मुकद्दस लोग जो हैं उन्होंने तो खुदावंद को कबूल कर लिया, या उनके अंदर एक डर और खौफ था और उन्होंने वो छाप जो थी वो नहीं थी ली, है ना? लेकिन जिन्होंने वो छाप भी ले ली और खुदावंद की जो पहले 3.5 साल का अरसा, तो हमने देखा कि वो मुसीबतों का दौर उसमें से वो भी गुजरे, या जो भी जमीन पे हो रहा था, जैसे हमने देखा कि काल पड़ा और खून-रेज़ी हो रही है, जंग हो रही है ना? लेकिन उन्होंने लोगों ने फिर भी खुदावंद को नहीं ढूँढा, खुदावंद के पास नहीं आए। वो जब मुसीबतें आती थी तो बल्कि और ज़्यादा खुदा के खिलाफ बोलते थे, कुफ़र बकते थे खुदावंद के खिलाफ। आगे चल के हमने वो पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है साफ कि वो कुफ़र बकते रहे खुदावंद के खिलाफ, जो गुनाहगार लोग थे, है ना? बजाए कि वो उनके अंदर कोई एहसास पैदा होता, कोई डर खौफ पैदा होता खुदावंद का, वो खुदावंद के फिर भी खिलाफ ही बोलते रहे। तो उन लोगों की अदालत होगी। इसलिए बहुत से लोग समझते हैं कि सबको उन उस मुसीबत में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमें कलाम ये बताता है कि वो जो गुनाहगार लोग हैं,
उनके ऊपर वो मुसीबतें आएँगी, उनको उस गज़ब के दौर में से गुज़रना पड़ेगा, जो बिल्कुल खुदावंद को कबूल नहीं करते, जो बुत परस्ती में पड़े हुए हैं, जो जिन्होंने जैसे कह लें नरसिंगा फूँका जा रहा है, अब जो है मनादी हो रही है कि खुदावंद आने वाला है, तौबा कर लें, है ना? तो खुदावंद को कबूल कर लें। तो इसलिए उन कौमों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो है वो सज़ा जो है वो आएगी। तो ये 7वां जैसे कह लें जो नरसिंगा फूँका जाएगा या 7वीं जब मोहर खोली है, तो ये सज़ाएँ जो हैं ज़मीन के रहने वालों के ऊपर आएँगी। और जिस तरह खुदावंद ने यिर्मयाह को कहा कि तू इनकी शफ़ाअत ना कर, है ना? किनकी? जो गुनाहगार हैं। कौन लोग? जो खुदा को किसी भी तरीके से नहीं मानते। और खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कबूल नहीं किया। उनके लिए जैसे कह लें खुदा की और खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने किसी भी तरीके से कबूल नहीं किया। वो बुत परस्ती में पड़े हुए हैं। वो उन्हीं गूंगे बुतों की पूजा जो है वो करते हैं। और उस वक़्त जैसे अ, कि हमने सीखा कि एंटी क्राइस्ट उस वक़्त होगा। उसकी कह लें हुकूमत जो होगी ज़मीन के ऊपर और जो वही पुराना साँप जो है, जो अस्तहा है, जो अ, शैतान है, वो भी उस वक़्त ज़मीन पे उसकी जैसे कह लें ज़मीन के रहने वालों के ऊपर उसका भी कहर होगा और खुदावंद का भी कहर जो है वो होगा। क्योंकि वो अपनी जो है जैसे हमने सीखा कि वो उसने अपना बुत जो है बनवाया होगा और वो सबको कहेगा कि इस बुत के आगे सजदा करें, उस बुत को पूजें, है ना? तो इसलिए उस वक़्त ये अगले चैप्टर में मेरा ख़्याल हम जाके पढ़ेंगे कि उस वक़्त इस्राएलियों की वो आँखें जो हैं वो खुलेंगी जब वो अ, अपने जाके हैकल में बैठ जाएगा और कहेगा कि मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा करें और वो अपना बुत बनवाएगा और तब इस्राएलियों की आँखें जो हैं वो खुलेंगी और वो फिर ये जो सच्चे कह लें यहूदी हैं, जो खुदावंद जिनको पता है कि सिर्फ़ खुदावंद ही के आगे सजदा करना है ना? वो लोग जो हैं उस वक़्त उनकी आँखें खुलेंगी और वो फिर सिजदा जो है उसको जो मुखालिफ़े मसीह है और जो शैतान है, उसके नहीं करेंगे क्योंकि उस वक़्त जो है वो शैतान भी जो है कल है सामने जो है वो आएगा, है ना? तो ये 7वीं मोहर जो है ये इस्राएलियों के ऊपर और जो गैर कौमें होंगी, जो गुनाहगार लोग ज़मीन पे रह गए होंगे, उनके ऊपर वो मुसीबतें वो जो खुदा का जो अज़ाब है या कहर जो है वो नाज़िल होगा और खुदावंद का दिन हमने सीखा कि रोज़े अज़ीम जो है वो आ गया है। इस वक़्त जब 7वीं मोहर जो है खुली, उससे जो पहले छठी 6 मोहरें खुली हैं, उसमें हमने देखा कि वो मसीहियों के ऊपर ज़ुल्म-सितम जो था वो हुआ था। लेकिन ये 7वीं मोहर दूसरे साढ़े 3 साल का अरसा जो है वो शुरू हो गया है ना? तो इसलिए ये जो बेदी है, ये इस चीज़ को पेश करती है, यहाँ पे जो आग जो थी ज़मीन पे डाली गई, यानी ये देखा हमने और फरिश्ते ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और ज़मीन पर डाल दी। ज़मीन पर डाल दी वो आग जो थी, है ना? तो ये वो हमने सीखा कि वो भस्म करने वाली आग है, वो जलाने वाली आग है। तो इसलिए ये ज़मीन पे उस वक़्त जैसे-जैसे ये नरसिंगा फूँका जाएगा, हम देखेंगे कि जब 7 नरसिंगे फूँके गए और 7 वो प्याले जो मुसीबतों के और तंगी के, तकलीफ के और गज़ब से भरे हुए प्याले जो थे, वो ज़मीन के रहने वालों के ऊपर उंडेले गए, है ना? तो जब पहला नरसिंगा जो था फूँका गया तो लिखा है कि खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और ज़मीन पर डाली गई और तिहाई ज़मीन जो थी वो जल गई और दरख्त जो थे और हरी घास जो थी वो जल गई, है ना? तो इसलिए ये जो पहला नरसिंगा जो है जब फूँका जाएगा तो ज़मीन पे कह लें जो पहली आफ़त है या पहली सज़ा जो है वो शुरू हो गई। तो इसलिए अ, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो
कुर्बान गाह है, ये बेदी जो है ये कहाँ पे पड़ी हुई है? जो पर्दा था जब खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी, तो हमने उस दिन मेहर जावेद ने भी बताया है ना कि ये पर्दा जो था ये हट गया था, और ये तख्त के सामने वाला जो है जगह है, ये वो वाली है। ये पाक मकाम जो है ये वो है। हाँ जी, तो ये मोस्ट पाक मकाम है, ये पाक तरीन मकाम है। तो इसलिए ये जो बेदी जो थी यहाँ पे थी, इसलिए ये आप ज़रूर आगे चल के और थोड़ा इसको, जिन्होंने पीछे जब हमने स्टडी की थी तोरा की किताब, जो पहली 5 किताबें, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि ज़रा ये कह लें याद करके रखें कि ये वाली जो जगह है, ये पाक मकाम जो है, ये यहाँ पे है, जहाँ पे बेदी है, जहाँ पे गोल्डन सोने की जैसे कह लें वो बेदी बनी हुई थी, वो जगह है। लेकिन हमारी तैयारी जो है, जो मोस्ट होली प्लेस है, पाक तरीन मकाम की जो तैयारी है, क्योंकि दुल्हन ने जो है वो यहाँ पे होना है पाक तरीन मकाम में। इसीलिए हम जो है तैयारी सिर्फ यानी मर्जी पूरी करनी नहीं है, जमीन पे जो हम हैं, जो दुल्हन है खुदावंद की, उनको कामिल मर्जी को पूरा करना है। यानी या पाक बनना है तो सिर्फ पाक नहीं, पाक तरीन या जैसे कह लें कामिल पाकीज़गी जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। यानी हम अपनी मर्जी से अपने इस बदन को कुछ ना करें, यानी कोशिश करें। हमने सीखा कि खुदावंद की जो 7 रूहें हैं वो हमें तैयार कर रही हैं। तो इसलिए ये एक जो नए हैं जिनको पीछे हमने नहीं उन्होंने सीखा, तो ये ज़रूर याद रखें कि ये जो जगह है ये तख्त के अब सामने है। ये पर्दा जो है वो हटा है, और लेकिन हमने यहाँ पे नहीं जाना। अब यहाँ पे हमने पीछे सीखा कि वो लोग जा रहे हैं जो जो शहीद हुए हैं, जो शीशे का समुंदर हमने देखा, वो क्या जो 15 चैप्टर में महल हमने पढ़ा था, है ना? तो खुदावन जो है अपने जो शहीद थे पिछले जो 3.5 साल का अरसा था, उसमें जो सारे खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे, वो ज़मीन से उठा लिए गए, या अब ज़मीन पे उस वक़्त यानी वो नहीं होंगे। बेवकूफ़ कंवारियाँ उस वक़्त ज़मीन पे होंगी, क्योंकि उन्होंने भी खुदावंद के हुक्मों पे अमल नहीं किया, नाफरमानी की, है ना? तो ये बाकी के गुनाहगार जो बुतों की पूजा करते हैं, या जो भी खुदा को किसी भी तरीके से नहीं मानते, जो कहते हैं खुदा है ही नहीं है, उन कौमों के ऊपर ये आग जो है वो नाज़िल होगी। इसलिए ये आग जो है जो गज़ब का दिन है, जो रोज़े अज़ीम है, वो गुनाहगार लोगों पे आएगा। ये हमने यिर्मयाह के हवाले से हमें साफ जो है पता चलता है। फिर हमने महल अहबार की किताब में भी पढ़ा था कि गज़ब का दिन उन पे आएगा जो गुनाहगार हैं। गज़ब का दौर जो है उन पे आएगा जो खुदा के खिलाफ काम कर रहे हैं, खुदा के खिलाफ चल रहे हैं, उसके हुक्मों पे नहीं अमल कर रहे, या उसको मानते ही नहीं है कुछ लोग जो हैं। तो इसलिए गज़ब का दौर उन पे आएगा, जो ये दौर जो है या 7वीं मोहर जो है उन लोगों के ऊपर खुलेगी, या अब भी मुसीबतें या उस दौर उसमें से गुजरते हैं जो खुदावंद को कह लें कि कबूल नहीं करते, तो उनके ऊपर गज़ब का दौर जो है वो आएगा। वो हर ये आग जो है उनके ऊपर नाज़िल होगी, है ना? तो ये पहली जो नरसिंगा जो फूँका गया है, तो इसके लिए हवाला जो है हम पढ़ते हैं कि यही आप देखें कि मुसीबतें या ये आफ़तें जो थीं, जब इसराइल मिस्र में से निकली, तो यही आग मिले हुए ओले जो थे, उस वक़्त पड़े थे। मेरा ख़्याल है सुरैया और रंजना आप वो निकालना जो खुरूज की किताब है, उसका 9 चैप्टर और उसकी 23 आयत में लिखा है ना? कि किन लोगों के ऊपर जो खुदा को नहीं मानते थे। अ, सुरैया आप निकालना अंजना। कौन सी? खुरूज की किताब जो है, कूच की जो किताब है,
ओके उसका 9 बाप। हाँ जी, और ये जब आफतें जो आई थी जमीन पे, जब खुदा ने इसराइलियों को निकाला मिस्र में से, हाँ जी, तो किन लोगों पे आई थी या कब ये औले पड़े थे? गड़े दी बाबा ना। हाँ 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 जी, पढ़ा 14 वर्स। हाँ जी, नहीं 40 नहीं है, 23 वर्ष या 22 से ही आप शुरू कर ले मेरा। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ, ਡੰਗਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਪੈਣ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਰਜ ਦੇ ਗੜੇ ਘੱਲੇ ਤੇ ਅੱਗ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਗੜੇ ਵਰਸਾਏ, ਸੋ ਗੜੇ ਸਨ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਨ ਡਾਢੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੌਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, जी सुरैया। ओके। और खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में है ओले ओले गिरे। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और खुदावन ने रद और ओले भेजे और आग जमीन तक आने लगी और खुदावन ने मुल्क मिस्र पर ओले बरसाए। हाँ जी, बस तो ये ओले हाँ ओके जी बोले। तो ओके किन ओके पे ओले और ये आग जो थी मिली हुई गिरी, जो खुदा उनको नहीं मानते थे, मिस्रियों के ऊपर। इसराइली कैसे उस आफत में से बच गए थे, है ना? तो खुदा जो है ये अब भी जब कह लें ये मुसीबत आएगी, ये सजा आएगी, आफतें आएंगी, तो खुदावंद के लोगों के ऊपर नहीं आएंगी। जो गुनाहगार लोग हैं, जिन्होंने खुदावंद को रिजेक्ट किया, जैसे देखें फरौन जो था, अ, उसका अपना आपको पता है खुदा था या बुत था, है ना? तो वो खुदा को नहीं मानता था, बल्कि उसने मूसा को और हारून को कैसे एक किस्म का कह लें हर बार ही रिजेक्ट किया। खुदावंद की आवाज़ को उसने रिजेक्ट किया, है ना? खुदावंद के बंदा जाते थे, है ना? लेकिन वो हर बार ही फ़िरौन जो था खुदा की जो आवाज़ है उसको रिजेक्ट कर देता था, तो या रद्द कर देता था, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह अब भी जो खुदा की आवाज़ को नहीं सुन रहे, रद्द कर रहे हैं, खुदा उनको कबूल नहीं कर रहे, उनके ऊपर वो मुसीबतें या वो दुःख या ये औले मिली हुई जो अ, खून मिले हुए औले जो हैं, आग पैदा होगी और वो ज़मीन के रहने वालों पे डाली जाएगी। जिस तरह उस वक़्त भी देखें डाली गई थी, और ये हमें जैसे कह लें और भी इसके बारे में कह लें हवाले जो हैं मिलते हैं। ये ज़िक्रिया की किताब में भी है, ये साया मेरा ख़्याल आप निकालना अ, क्या बोलते हैं, अंजना और सुरैया, ये साया 28 बाब उसमें भी इसका ज़िक्र है कि खुदावंद जो है किन लोगों के ऊपर ये मुसीबतें जो हैं या ये लेके आएगा, सज़ाएँ या आफ़तें या और हिस्कियल की किताब में भी है। जी, सुरैया? 28 वर्स बाजी। 2 ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਤੇ ਸਮਰਥੀ ਜਨ ਹੈ, ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗੂ, ਹੜ ਪੈਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਟਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, और फिर ना क्या अ, हाँ जी पढ़ो। हाँ जी, पढ़ो। देखो खुदावन के पास एक जबरदस्त और जोर आवर शख्स है जो उस आंधी की मानंद जिसके साथ ओले हों और बादे समूम की मानंद और सैलाब शदीद के मानंद जमीन पर हाथ से पटक देगा। हाँ जी, और ज़बूर 105 उसकी 32 आयत में भी लिखा हुआ है कि खुदावंद ये जो है सज़ा है ज़मीन के रहने वालों पे आएगी, औले और ਜਿਰਮੀਆ ਦੀ ਬੁੱਕ ਬਾਜੀ। ज़बूर
साम हाँ 105 जी उसकी ठीक है 32 है 32 वर्ष। 32 है ना ओके। ਉਹਨੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਂ। ਆਮੀਨ। हाँ जी आगे भी बहरहाल ये जैसे कह लें कि अगर उसको पूरा ही हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि किन लोगों पे आएगी जिन्होंने खुदावंद को रद्द करते हैं, गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं और खुदावंद का एक डर और खौफ होता है या खुदावंद को वो कबूल नहीं करते, तो उनके ऊपर ये मुसीबतें, ये दुख, ये तकलीफें जो हैं वो आएंगी। उनको इस बड़ी मुसीबत में से या गजब के दौर में से गुजरना पड़ेगा। एक तो उनकी जो सजा है, वो जो अब्दी सजा है, वो जहन्नम की आग है या की झील है, उस वक्त मिलेगी। लेकिन जमीन पे भी उनको जो सजा है वो मिलेगी। जो खुदा को आज रिजेक्ट करते हैं, जो आज रद्द कर रहे हैं। इसीलिए महल कलाम में लिखा हुआ है कि अगर आज खुदा की आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। जिन्होंने आज अपने दिलों को सख्त किया हुआ है, वो किसी भी तरीके से खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते। खुदावंद उनको बार बार मौके देता है कि वो खुदावंद को कबूल कर लें। खुदावंद क्योंकि देखें जब हम आगे चल के वो उसमें सीखेंगे कि जब नया आसमान और नई जमीन होगी जमीन पे, तो वो अब उस शक्ल में नहीं होगी जैसे हम कहते हैं कि जी कह लें गोल है जमीन या है ना। तब जो नया आसमान नई जमीन जो है वो इस शक्ल की होगी। ये हमें अबरानियों के खत में मिलता है कि नया आसमान नई जमीन और नया यरूशलेम जो है वो आसमान से उतरा। और हमें पता चलता है कि वो जो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो पाक तरीन मकाम है वहां पे खुदावंद का तख्त है, यानी ये एक शेप है। और जो सेन जैसे हमने अभी क्या पढ़ा वो, यानी ये जो शक्ल है ये होगी। और बाकी इसके इर्द गिर्द जो दुनिया है या वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये हमने सीखा कि जो समंदर है, अभी सीखा नहीं है, अभी आगे चल के 21 चैप्टर में है या 22 चैप्टर में महल हम पढ़ेंगे कि समुंदर भी ना रहा। सिर्फ वहां पे नया यरूशलेम, नया आसमान और नई जमीन जो है वो होगी। तो इसलिए बाकी की जो दुनिया है, यानी दुनिया की शेप जो है, तब कह लें ये जैसे ये जो खैमा इज्तिमा बना हुआ है, बिल्कुल इस तरह तब जो है शेप जो है वो उसकी हो जाएगी। तो जो कुछ लोग जो हैं वो इस जगह पे होंगे, ये वाला जो जगह है जहाँ पे जिसको वेड़ा कह लें, सेन कह लें, या नई जमीन जो है यहाँ पे होंगे। और बाकी के लोग जो हमने थोड़ा सीखा वो ये जहाँ बंद है यहाँ पे होंगे, जो पाक मकाम है और पाक तरीन मकाम है। तो लेकिन शेप जो है वो इस तरह की होगी। तो आज अगर वो खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, निजात पा लेते हैं, तो वो इस दरवाजे से कह लें, ये जो पर्दा जैसा नजर आ रहा है ना, इसके जरिए वो सेन में दाखिल हो गए हैं। जो ये वेड़ा है इसमें दाखिल हो गए हैं। तो इसलिए वो जो आग है, जहन्नम की आग जो है, उससे बच जाएंगे। लेकिन जो इसके बाहर हैं, जो इस क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा मैं हूँ, जो उसके जरिए इस सेन में दाखिल। और कोई ये जो है हैकल भी कह लें बनी, और ये जो खैमा इज्तिमा बना था, इसमें और कोई दरवाजा नहीं था रखा। बाकी सारा तरफ से, चारों तरफ से, तीनों तरफ से कह लें बंद था, एक ही दरवाजा था। तो उसी बात को खुदावंद ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने, कि दरवाजा मैं हूँ, कोई भी किसी और से तरीके से इसमें दाखिल नहीं हो सकता। यानी वो नई जमीन नए आसमान में, नए यरूशलेम में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह को वो कबूल नहीं कर लेता। क्योंकि ये तब जमीन की जो दुनिया की है वो शेप जो है वो ये होगी। तो जो खुदावंद यीशु मसीह के जरिए इसमें दाखिल हो गया है, आगे जैसे जैसे वो कह लें खुदावंद के साथ वफादारी से चलेगा, खुदावंद के हुक्मों पे अमल करेगा, वैसे वैसे उसका दर्जा जो है या उसका रुतबा जो है
या वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, है ना? तो वो इस जगह पहुंच जाएगा। ये दो जो जगह आगे हैं, है ना? तो ये अब हमारे ऊपर जैसे कह लें डिपेंड करता है कि हम खुदा उनके साथ कितनी वफादारी से चल रहे हैं, कितने उसके हुक्मों पे अमल कर रहे हैं। तो फिर जैसे कह लें स्टेप बाय स्टेप हम आगे आगे चलते जाएंगे। खुदावंद जो है हमें दर्जा बदर्जा जो है वो आगे लेते जाएगा, हमारी पाकीज़गी के मुताबिक। हमारी खुदा उनके साथ जो मोहब्बत है, हमारी जो हलीमी है, जैसे हमने पिछले दिनों सीखा कि जो 4 सिफ़तें हैं, जो ख़ुसूसियात हैं खुदावंद की, वो अगर हमारे अंदर वो चारों काम कर रही हैं, तो हम इस तख़्त तक जो है, हमारी रसाई जो है, जहाँ पे खुदावंद का तख़्त लगा हुआ है, वहाँ तक हम पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, तो वो जो सेहन है, जो वेड़ा है या नई ज़मीन जो है, उसका दर्जा जो है या उसकी जगह वो वहीं तक रहेगी। लेकिन अगर हम खुदा को रिजेक्ट कर रहे हैं, हर आवाज़ जो है कोई भी आप किसी के साथ हम जैसे अभी हमने सीखा कि वो लोग हम जो मुकद्दस लोग हैं, दुआएँ करते हैं उनके लिए, लेकिन उनके अंदर कोई एहसास नहीं, कहीं पे भी, कभी। तो वो गुनाहगार जो लोग हैं, तब उनकी अदालत होगी, तब उनके ऊपर ये औले और आग जो है वो आसमान से नाज़िल होगी, है ना? तो 1/3 जो ज़मीन है वो जल जाएगी और 1/3 जो दरख्त हैं वो जल जाएँगे और जो हरी घास है वो जल जाएगी। यानी दुनिया की जितनी भी कह लें वो तादाद है उसमें से 1/3 जो है, जब पहला नरसिंगा फूँका जाएगा, तो वो दुनिया से जो ये गुनाहगार लोग हैं, वो कह लें ख़त्म हो जाएँगे, मर जाएँगे या वो मारे जाएँगे, है ना? 1/3 ये ज़मीन जो है सॉरी हाँ, ये जल जाएगी। यानी ज़मीन के ऊपर पहला जो है एक कह लें जो आफ़त है वो आएगी या सज़ा जो है वो आएगी। और जब दूसरा नरसिंगा फूँका जाएगा तो ये हम इस पे मंडे को बात करेंगे, है ना? लेकिन अभी तक हमने ये सीखा कि ये जो ऊद सोज़ है अ, जो ये ये असल में हमारी दुआएँ हैं। हम जो अपने बहन-भाइयों के लिए जो अभी तक मसीह में नहीं आए, उनके लिए दुआएँ करते हैं, शफ़ायत करते हैं, जिस तरह यिर्मयाह जो था शफ़ायत कर रहा था खुदा के और हम जो मुक़द्दस लोग हैं, वो दुआएँ करते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर अभी तक एहसास पैदा नहीं हुआ, अभी तक वो गुनाह में ज़िंदगी का गुज़ार रहे हैं और ये फ़ज़ल का दौर जब तक यानी हमने सीखा कि ज़मीन पे खुदावंद पाक रूह है, खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, वो तब तक फ़ज़ल का दौर है। या उस दौर में भी अगर अब जैसे कह लें कलाम हुआ है किसी ने उनके साथ और उस वक़्त वो खुदावंद यीशु मसीह की खातिर वो जान दे दें और वो छाप जो है, वो जो शैतान की है, एंटी क्राइस्ट की है, वो ना लेंगे तो वो भी उन शहीदों में या उन अक्लमंद कवारियों में शामिल हो जाएँगे। अब जैसे मैं कहूँगी कि अब उनके साथ मनादी की हुई है, अब उनके साथ प्रचार किया जो करते हैं, है ना? तो उन्होंने वो आवाज़ सुनी है कि सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह ही ज़िंदगी है, उसमें ज़िंदगी है। तो आज अगर उन्होंने वो कलाम सुना हुआ है, इसलिए ये नहीं कि हम दुआएँ करनी छोड़ देंगे जो अभी हमने कहा ना, दुआएँ करनी नहीं छोड़नी। वो हो सकता है कि उस टाइम में उनको याद आए और वो उस वक़्त कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह की खातिर जान जो है वो दे देंगे, तो वो शहीदों में शामिल हो जाएँगे, है ना? तो इसलिए हमें मनादी करनी है, हमें प्रचार जो है वो करना है, नरसिंगा जो है वो फूँकना है, ये कलाम की बातें जो हैं या दुआएँ जो हैं हमें शेयर करनी हैं एक-दूसरे के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या गैर कौमों के साथ। क्योंकि खुदावंद जो है, हो सकता है उस वक़्त उनको बचा ले, उस वक़्त मनादी नहीं होगी, उस वक़्त प्रचार नहीं होगा, लेकिन खुदावंद जो उनके खुदावंद के फरिश्ते उस वक़्त प्रचार कर रहे होंगे। ये अगले चैप्टर में मेरा ख़्याल है हम पढ़ेंगे। तो उस वक़्त फरिश्ते कहेंगे कि तुम जो है ये जो छाप है वो अपने माथों पे ना लो, वो क्या कहते हैं निशान जो है वो ना लो, मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो ना लो। उस वक़्त फरिश्ते करेंगे। उस वक़्त जो
मसीही हैं वो प्रचार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होगा, यानी खुदावंद का कोई काम नहीं होगा, मनादी नहीं होगी। लेकिन खुदावंद जो है, जो अब जिन्होंने कलाम सुना हुआ है, हो सकता है उस वक्त खुदावंद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लें और वो छाप जो है वो अपने माथे पे और हाथों पे ना लें और वो शहीदों में शामिल हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें प्रचार करना नहीं छोड़ना, दुआएं करना नहीं छोड़ना, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि अगर वो मुझे कबूल नहीं करेंगे तो तब उन पे वो जो आग है वो नाज़िल होगी। और वो आग कहाँ से नाज़िल होगी? ये जो कुर्बान गाह है, ये जो बेदी जो तख्त के आगे है, यानी खुदावंद यहीं से हमें पाक करने वाली आग जो है वो भेजता है, नाज़िल करता है, और यहीं से जो सज़ा वाली या भस्म करने वाली आग जो है, क्योंकि ये भी लिखा है, आपको पता ही है ना, कि खुदावंद क्या है? जलती हुई, भड़कती हुई आग है, आग की मानिंद है। तो इसलिए वो आग जो है वो उस वक़्त गैर कौमों के ऊपर कह लें या ज़मीन जो है, ज़मीन सबसे पहले कह लें कि लानती है, या अ, जैसे लानत जो थी ठहर गई थी ऊपर जब आदम और हवा ने नाफरमानी की, जब काइन ने नाफरमानी की, है ना, काइन और हाबल की जब आपको स्टोरी पता ही होगा ना, तो क्या हो गया था? जमीन जो थी वो लानती हो गई। तो इसलिए सबसे पहले कह लें कि जमीन जो थी उसके ऊपर जो है वो दरख्त जो है जल गए, जमीन जो है वो जल गई, एक तिहाई यानी एक हिस्सा जो है वो जल गया, है ना। और कल मंडे को हम अगली जो नरसिंगा है फूंका जाएगा, उस पे हम बात करेंगे। तो ये जो पहला नरसिंगा है, अगर हम इसको जैसे वो आفتों का हमने देखा कि वो ओले और वो नाज़िल हुए, तो इसी तरह अगर हम देखें कि पैदाइश की किताब जो जेनेसिस की बुक है, उसमें भी हम देखते हैं कि दरख्त जो है, या जैसे-जैसे खुदावंद एक-एक दिन कह लें कि खुदावंद बना रहा था ये ज़मीन, आसमान और जैसे सूरज, चाँद, सितारे, उसी तरह हमने उस दिन भी बात की कि उसी तरह ये कह लें इनकी भी सफाई हो रही है, या इनका भी अ, क्योंकि जब 1000 साल बादशाही शुरू होगी तो इनकी नेचर जो है ज़मीन की बदल जाएगी। जानवरों की जो नेचर है वो बदल जाएगी। वो यशायाह की किताब में लिखा हुआ है कि वो फिर घास खाएँगे, वो जो एक-दूसरे को जानवर फाड़ते हैं या गोश्त खाते हैं, वो नहीं होगा। तो उस वक़्त हम भी कह लें कि सब्जियाँ खाएँगे, गोश्त नहीं खाएँगे, है ना? तो जो आजकल गोश्त नहीं खाते, तो 1000 साल बादशाही में भी यही होगा कि नेचर जो है वो बदल जाएगी। जैसे खुदावंद ने ज़मीन और आसमान को जब आदम और हवा को बनाया था, तो वही जैसे कह लें दौर जो है, असल में 1000 साल बादशाही जो है, वही दौर जो आदम और हवा जैसे रहते थे, वही नेचर जो है, ज़मीन की जो है, वो तब्दील हो जाएगी उस वक़्त। तो जो इंसान है उसकी भी नेचर जो है वो बदल जाएगी। तो उस वक़्त क्योंकि शैतान को बंद कर दिया जाएगा, आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे, है ना? तो इंसान की जो नेचर है, पुरानी इंसानियत जो है वो बदल जाएगी और उसमें जो ये गुनाह का जो है वो नहीं रहेगा। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे और हम सबको तैयार करे उस पाक दामन कमवारी की मानिंद जिसको खुदावंद यीशु मसीह लेने आ रहा है, और ताकि हम में से कोई भी इस ज़मीन पे ना रहे जिसके ऊपर वो अज़ाब जो है वो नाज़िल होने वाला है, जिसके ऊपर वो खुदावंद का कहर जो है वो नाज़िल होने वाला है, गज़ब का दौर जो है वो आने वाला है ना? तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी तैयार करे कि हम खुदावंद की जो रैप्चर है उसके लिए तैयार हों। दूसरी आमद के लिए नहीं, रैप्चर जो है उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पे कदम नहीं रखना, उसने बादलों पे ही आना है और बादलों पे ही लेके चले जाना है ना? आगे चल के और थोड़ा इसको डिटेल से करेंगे कि कुछ लोग दूसरी आमद और रैप्चर को मिक्स करते हैं, तो ये हम आगे चल के सीखेंगे। रैप्चर जो है वो हमेशा याद रखें खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पे कदम नहीं रखना,
खुदावंद ने हवा में आना है और हवा में ही उसकी जो दुल्हन है, उसके जो ओवर कमर जो लोग हैं, उनको वो ले जाएगा। तो खुदावंद हम सबको उस रैप्चर के लिए खुदावंद तैयार करे। तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू सोनिया अगर हैं हमारे साथ। सोनिया है हमारे साथ? ओके जी। लास्ट प्रेयर किसकी है? सॉरी, सराफीन की है मेरा ख्याल। सुरैया? जी उन्हीं की है लास्ट प्रेयर, सिस्टर सराफीन की। सराफीन आप करेंगी या किसी और का बोलें? क्योंकि सराफीन मेरा हाल उधर बिजी है ना। अगर किसी को भी खुदावंद का रूह, हाँ जी सराफीन आप करेंगे प्रेयर? नहीं बाजी, मैंने तो आपको कहा था, मैं ड्यूटी ना लगाई मेरी है। ओके ओके, सॉरी ठीक है। खुदावंद का रूह जिसको भी उभार रहा है वो लास्ट प्रेयर जो है वो कर सकता है। मेरे लिए प्रेयर भी करनी है मैंने। ओके। जी किसी को नहीं उभार रहा खुदावंद का पकड़। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो टाइम दे रही थी कि चलो कोई ना कोई कह दे। चलें। अगर कोई करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। समीना हमारे साथ हैं। मेरा गला खराब हुआ जरा ना, इस वजह से मैं नहीं कर रही थी, बहुत अंदर से दर्द हो रहा है। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Glory to Jesus, wonderful Lord. Praise the Lord, hallelujah. सॉरी, हाँ श्रेया वो रोमा के लिए प्रेयर रखनी है। उसने फिर 1 साल के लिए उसलिए राग फिर से जाना है evangelism। Praise the Lord, hallelujah. और मेरे लिए भी प्रेयर करनी है, मेरे साल में बहुत ज्यादा दर्द। Okay, hallelujah. और मेरी भी सीरी सुंदर वाली। Praise the Lord, glory to Jesus. Oh Jesus, hallelujah. Hallelujah. Oh Rosoro Siri Shindere Bere Bere Si. Praise the Lord. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Wonderful Lord. Wonderful Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. अब आप मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं जलाली पिता रब्बुल फाज, इसराइल के कदूस, यहूदा के बब्बर, हमारी जानों के लंगर, हमारी पनाह, हमारी छिपने की जगह, हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारा हरावल, हमारा चंडावल, हमारे छिपने की जगह है बाप। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, हमारा महकम किला, हमारा दरवाजा खुदावन, हमारी जिंदगी की रोटी, दुनिया का नूर खुदावन है बाप, राह हक और जिंदगी है बाप, अंगूर का हकीकी दरख्त है बाप, तेरा बेटा यीशु मसीह है बाप। हम तेरे शुक्र गुजार हैं बाप। हालेलुया, Praise the Lord, oh Jesus, praise you Jesus, wonderful Lord, तेरा शुक्र तेरी तारीफ इस्लाम है बाप, तेरे शुक्र गुजार है बाप, तेरे प्यार तेरी मोहब्बत तेरे फजल के लिए दामन, तेरी तसल्ली तेरे इत्मीनान के लिए बाप दामन, तेरे शुक्र गुजार है इस बात के लिए दामन कि तू हर रोज हमें छांट रहा है, तू हर रोज हमें तराश रहा है, तू हर रोज हमें शेपते रहा है, तू हर रोज हमें दामन रिन्यू करता है, दामन हमें आगाही बख्शता है हमें ए बाप, क्योंकि ए बाप तेरे कलाम लिखा है कि तेरी बातों की, तेरे कलाम की तशरीह नूर बख्शती है दामन, ए बाप हिकमत बख्शती है, फहम बख्शती है, अकल देती है दामन, रोशन करती है बाप, जिंदा करती है बाप। हम तेरे शुक्रगुजार हैं दामन तेरे कलाम के लिए, तेरा ही शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ और तेरी सताइश करते हैं जलाली बता के बाप। तू आज अपने तन बंदी में से होकर हमसे कलाम कर रहा है दामन, हमसे बातें करता है दामन, तेरा पाक तेरी बंदी में से होकर दामन हमारे साथ बातें करता है। अब आप हम तेरे शुक्र गुजार हैं, तेरी ही तारीफ और तेरी सताइश करते हैं जलाली पिता। इस साल का कदूस है बाप, हम तुझे सिजदा करते हैं आज खुदावन दामन, तूने हमें बताया है कि अब आप हमें वो जो
गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो जो तुझे कबूल नहीं करते हैं, वो जो तेरे कलाम को रद्द करते हैं, वो जो तुझे खुदा नहीं मानते हैं, वो जो तेरी अलूहियत को नहीं मानते हैं, वो जो तुझे रद्द करते हैं, तुझे कबूल नहीं करते हैं, तेरी आवाज पर कान नहीं धरते हैं, वो जो जिनके अंदर गुनाह का एहसास नहीं है और जो यानी कि वो गुनाह कर रहे हैं और वो उसको कबूल नहीं करते हैं। ऐ बाप आसमानी खुदावन तू ऐसे लोगों की जजमेंट करने को आ रहा है, ऐसी अदालत करने को, ऐसे खुदावन उस खुदावन उनको खुदावन उनकी खुदावन उनके लिए खुदावन तू वो सब कुछ खुदावन करने को आ रहा है। ऐ Yes. बाप खुदावन तेरा खुदावन बख्श दे क्या बाप खुदावन हम बोले भटके ना रहे खुदावन हम दावन बाप गुनाह के एतबार से दावन अपने आप को मुर्दा कर दें बाप। हम दावन जब जब तेरी आवाज सुने तो खुदावन हम जल्दी करें तेरी आवाज को कबूल करने के लिए। खुदावन हम तेरी आवाज को खुदावन अपने अंदर खुदावन अपनी जिंदगी में खुदावन बाप लेने के लिए बाप हम तेरे कलाम को कबूल करें, हम तौबा की Yes. तरफ रुजू करें, हम मुआफी मांगे, हम तौबा करें और तेरी तरफ फिरें बाप यीशु के नाम से, ताकि हम उस गजब से, उस गजब के दिन से, उस रोजे अजीम से, उस दिन से अब आप हम बच जाएं यीशु मसीह के नाम से। आज Amen. हमें दान हमारे जिंदगी में जो भी बुत परस्ती है, जो भी गुनाह है, जो भी दान हरामकारी जिनाकारी दान बुत परस्ती अब आप हमारी जिंदगी में जो हम तुझसे बढ़कर किसी और से प्यार करते हैं, किसी और को चाहते हैं, किसी और को वक्त देते हैं, किसी और को सराहते हैं, किसी और को तवज्जो देते हैं बाप, तुझसे ज्यादा बढ़कर बाप हम किसी और की तरफ लपकते हैं। बाप तू हम पर रहम कर, करम कर दावन। बाप हमें मुआफ कर उन ऐसे हमारे ऐसे रवैयों से, हमारी ऐसी बातों को दावन तू हिसाब में ना ला और दावन हम तुम्हें मुआफ कर यीशु के नाम से बाप। और यस लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी टू जीसस वंडरफुल लॉर्ड। खुदा बाप दावन तू हम पर रहम कर दावन। हम बाप हम रहे हुए ना हो, हम जमीन पर रहने Yes. वाले ना हो, हम उस गजब का शिकार ना हो। आज तो अपने लोगों को हर तरह के दावन बाप कहर से, तलवार से, रोड एक्सीडेंट से, बम ब्लास्ट से, चोर चिकारों से, नाकानी अफवाह से बाप अपने लोगों को बचा कर रखना बाप Yes. यीशु के नाम से। हमें उस दिल से दावन जो कहत का है, जो कहर का है, जो कहत का है, जो तलवार का है, जो गजब का है, जो दुख का है, जो अजियत का है बाप तू हम में से पूरे ग्रुप में जो हम सब शामिल है बाप तू बख्श दे कि हम में से कोई भी इस दिन का शिकार ना हो। और यीशु के नाम से बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से बाप हमारी दुआएं खुदावंद अब्बा तेरी तक पहुंची है बाप यीशु के नाम से बाप। हालेलुया यस यस माय लॉर्ड हालेलुया। जिस तरह धुआं है बाप ऊपर को जाता था बाप, तूने बताया है कि धुआं हमारी दुआओं को पेश करता है बाप। वक्त है क्या बाप आज हमारी दुआएं दान हमें एक दूसरे को मजबूत करने का बाइस बने, हमें एक दूसरे को तसल्ली देने का बाइस बने, हमें एकदम बाप निजात की तरफ लेके जाने का बाइस बने, हमें दरवाजे की तरफ लेके जाने का बाइस बने, हमें पाक तरीन मकाम की तरफ लेके जाने का बाइस बने यीशु मसीह के नाम से बाप। हालेलुया हम एक दूसरे के लिए मजबूती का, तसल्ली का, बरकत का, प्रॉस्पेरिटी का बाइस बने यीशु के नाम से बाप। हालेलुया तू आज तो कहता है कि यही है दिन जो खुदावन का है। आज खुदावन जब हम तेरी आवाज सुने, तेरा कलाम कहता है कि अपने दिल को सख्त ना करो यीशु के नाम से बाप। आज तेरे आगे मिन्नत करते हैं हम अपने दिलों को सख्त ना करें दावन है बाप। जिन रवैयों को हमने छोड़ना है, जिन बातों को, जिन कामों को, जिस एरिया में बुत परस्ती है दावन वो दावन वो हम छोड़ते चले जाए, उनको रद्द करते चले जाए और खुदावन यीशु मसीह के नाम से बाप। हालेलुया तू कहता कि तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा बाप आसमानी। आज वक्त कि हम तेरी नजदीकी को चाहें, हम तेरी कुर्बत को चाहें, हम तेरे बाप तेरे हाथों के फैलाव को चाहें यीशु के नाम से बाप। ताकि तेरे गहरे भेद हम पर खुलते चले जाएं, ताकि तेरी बातें बाप हमें दामन
बाप खुदावन बाप तेरी बातें हम पर अयां होते चले जाए, ताकि तेरी बातें खुदावन हमें बाप तेरा ताज़ा करते चले जाए, तेरा कलाम हमें बाप पाक करता चला जाए, तेरी आग खुदावन हमें पाक करते चले जाए। तूने हमें बताया कि खुदावन वही आग जो है कुर्बान गाह से खुदावन वही आग खुदावन खुदावन बाप खुदावन गजब को भी लाती है, और वही आग है जो वो हमें पाक भी करती है। बाप वक्त से कि बाप वो आग खुदावन हमें पाक करती चली जाए, वो आग हमें प्योरीफाई कर दे यीशु मसीह के नाम से बाप। हालेलुया रोज़ो रोज़ी रशिंदे बेरज़री यीशु मसीह के नाम से बाप तेरा के मिन्नत करते हैं कि हम में से हर एक पूरे ग्रुप पर बाप तेरी आग आए, तेरी पाक आग आए, खुदावन पाक करने वाली आग है, खुदावन प्योरीफाई करने वाली आग है खुदावन बाप यीशु के नाम से, ताकि हम पाक तरीन मकाम में शामिल हो सके बाप। मोस्ट होली प्लेस जा सके बाप, मोस्ट होली प्लेस की तरफ बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम है बाप। तू हमें ढांढ में तराश है बाप यीशु के नाम से बाप। अभी जब हम पर हमें तूने मौका फराहम किया बाप, हमारी हड्डियों में जोर है, कुव्वत है, मसल्स हमारे मजबूत है, हड्डियां हमारी दामन जोर आवर है बाप। हम तेरे शुक्रगुजार हैं वक्त क्या बाप है बाप, हम अपने तमाम तरजीहात से ज्यादा तुझे दामन अवलियत दें, तुझे दामन बाप प्यार करें, तुझे तुझे सिजदा करें, तुझे बाप बयान करें, तेरे अजीब कामों का बयान करें खुदावन, तेरे तेरी बातों को पूजा करें खुदावन, तेरी बातों को बाप खुदावन लोगों तक लेकर जाएं बाप यीशु के नाम से बाप। हालेलुया ताकि लोग इस रोज़े अजीम से बच जाए, ताकि हम उस यीशु के नाम से बाप। हालेलुया तू हमें तैयार कर, तू हमें रिन्यू कर, तू हमें रोज अपने कलाम से भरता, रोज अपने कलाम की बातों से तू हमें आगाही बख्शता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ और इस्ताश करते हैं जलाल के पिता रब्बुल फाज इसराइल के कदूस यहूदा के बब्बर दामन वक्त क्या बाप। हम इस सातवीं जो मोहर है बाप, हम इसके गजब से बच जाएं, हम इसके कहर से बच जाएंगे नाम से बाप। हालेलुया बाप हम रैप्चर में जाएं, जैसे तुमने हमें बताया कि बाप हमें रैप्चर के लिए तैयारी करनी है। हमें रैप्चर जब तू आए तब बाप हम बादलों के साथ हवा में तेरा इस्तकबाल करने वाले बने यीशु मसीह के नाम से बाप। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावन तेरा ही शुक्र, तेरी तारीफ और इस्ताश करते हैं बाप। खुदावन तेरा ही शुक्र, तूने हमें बताया दूसरी अमन के बारे में बताया, तूने हमें रैप्चर के बारे में बताया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ और इस्ताश करते हैं जलाली पिता। तेरा ही शुक्र बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं पूरे ग्रुप के लिए खुदावन। तेरी बड़ी खुदावन आग को, तेरी पाक आग को खुदावन मांगते हैं खुदावन, तेरी तब्दील करने वाली आग को मांगते हैं, प्योरीफाई करने वाली आग को मांगते हैं पूरे ग्रुप पर है बाप। तेरी आग है खुदावन और खुदावन और वो आग जो भस्म करने वाली है दुश्मनों के मंसूबों को, दुश्मन के फैसलों को, तीरों को खुदावन बाप फेल करने वाली है खुदावन, उसके मंसूबों को भस्म करने वाली है बाप। वो आग खुदावन हम यीशु के नाम से मांगते हैं जो दुश्मनों को, दुश्मन के तीरों को भस्म कर दे, तोड़ दे, काट दे, जला दे यीशु के नाम से बाप। यीशु के नाम से शिकायत करने चला चाहिए बाप। आज खुदावन बाप दुश्मन हमारी तरफ आए तो खुदावन बाप खुदावन उसको वो आग नजर आए, वो पाक आग नजर आए और वो भस्म हो जाए यीशु के नाम। हालेलुया वो अपने मंसूबों में गिरफ्तार हो जाए दावन, वो आग से भस्म हो जाए यीशु के नाम, उसके तीर पर फेल हो जाए लोग आगे बढ़े, तारे लोग दुश्मन का सत्यानाश करने वाले हो जाए यीशु के नाम से बाप। हालेलुया और यस लॉर्ड फजल तार हम पर बाप, तेरी मेहरबानी हम पर जारी रहे, तेरी शफकत हम पर जारी रहे, गुनाह के हम गुनाह को नोक करने वाले बनते चले जाएं, हम गुनाह पर खुदावन हम
दूर मेहनत करते हैं ऐ बाप के हमारी जिंदगी को हमारे गुलामों से हर तरह की जानकारी, हर तरह की जिम्मेदारी, हर तरह की बुत परस्ती, जादूगरी ऐ बाप यीशु के नाम से जाती रहे इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप दान बुत परस्तियां जाती रहे बाप। हमारे सिजदे तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए हो बाप, हमारे सिजदे तेरे लिए है बाप, हमारी सारी प्रस्तुति तेरे बेटे के लिए हो ऐ बाप। हमारा सारा दान है बाप, हार श्रृंगार है बाप, हमारा सारा पहनाव है बाप, हमारी सारी खूबसूरती है बाप तेरे लिए हो, तेरे बेटे के लिए हो यीशु के नाम पे बाप। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में बाप। हालेलुया दावन तू हमारा हार श्रृंगार हो, तू हमारी खूबसूरती है, तू हमारे चेहरे की रौनक हो खुदावन, तू हमारा दान ओढ़ना पहनना है बाप। हम तेरे शुक्रगुजार हैं यस माय लॉर्ड। हालेलुया अरे बेरे बेरे जीरी रिशिंदर बरोड़ और तेरी तारीफ और तेरी तारीफ दान हमें ऐसा वो हार श्रृंगार दे दे बाप जो तू खुदावन हमें जिससे तू हमें बाप खुदावन संवारना चाहता है और यीशु के दुनिया की बाप दुनिया के जेवर से जिस्मानी जेवर से बाप दुनियावी जेवर से अपने आप को रास्ता ना करें, हम तेरे पाक रूह की खूबसूरती से अपने आप को रास्ता करते चले जाएं, तेरे खिलाफ अपने आप को रास्ता करें और यीशु के नाम से तेरे लहू का रंग हमारी जिंदगी में आता चला जाए यीशु के नाम से। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हम दुनिया का रंग ना लें बाप, हम जिस्मानी बातों का शिकार ना हो, हम दुनियावी बातों का शिकार ना हो बाप। और यस माय लॉर्ड हालेलुया हम तेरे साथ लिपटे रहे हैं बाप, हम तेरी खूबसूरती में बढ़ते चले जाए और यीशु के नाम में बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो माय लॉर्ड, तेरा शुक्र हो और माइटी गॉड तेरा शुक्र हो दावन, तेरा शुक्र है कि आसमान तेरा तख्त जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। आज वक्त है कि हम अपनी तरफ तवज्जो करें, हम अपनी तरफ दावन देखें, हम अपने ऊपर निगाह करें, हम अपनी तरफ देखें और अपने गुनाहों पर बाप हम शादमानी ना करें, हम खुश ना हो बल्कि अपने गुनाहों से तौबा करने वाले बनते चले जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करने वाले बनते चले जाएं। बाप तेरा शुक्र हो खुदावन कि तू खुदावन बाप वक्त है क्या बाप हमारी आंखें हमारे हमारा जमीन रोशन रहे अब आप यीशु के नाम से बाप, हमारा जमीन मुर्दा ना होने पाए और यीशु के नाम से बाप तेरा शुक्र है माय लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज आगे मेहनत करते हैं खुदावन क्या बाप बाप में वो दुल्हन बाप में दुल्हन की तरह तैयार दुल्हन के मानो खूबसूरत बनाता चला जा, दामन कमारी के मानो आप हमारी तैयारी करता चला जा और हमें खूबसूरत बनाता चला जा यीशु के नाम से। कहता है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं आपसे बरकतों से भर दूंगा। तू खुद कहता है कि आजमा कर देखो खुदावन कैसा भला है। तू खुद कहता है कि तुम मेरी तरफ आओ और यस फादर गॉड हालेलुया तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो खुदावन हम तेरे तरफ आते हैं, हम तेरे लिए अपने होंठों को खोलते हैं, हम तेरी तमन्ना करे बाप, हम तेरी ख्वाहिश करे बाप यीशु के नाम से बाप। आज दिल की मर्जी के मुताबिक है तो हम वो करते रहे बाप जो तेरे कलाम के मुताबिक है, हम दुआएं करने वाले बने। तू कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी रात बांटो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। आज हम पहले तुझे आज हम पहले तुझे अगर हम तरजीह दे बाप, हम तेरी तरफ तवज्जो हो, हम तेरी तरफ देखे है बाप, हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को दाऊद बाप मजबूत करने की तरफ पहले देखे है बाप, फिर हमें तू कहता है कि तुझे ये सारी चीजें तुमको मिलती चली जाएंगी। आज के नाम पर दाऊद हम सबसे पहले अपनी रूहानी दाऊद प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं, हम अपनी रूहानी बाप ग्रोथ को चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से बाप, यीशु के नाम से बाप स्पिरिचुअली डाउन ग्रोथ करें यीशु के नाम से बाप। हालेलुया यस यस गॉड हालेलुया। जैसा तू कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। बाप तेरा शुक्र करते हैं यस माय लॉर्ड दाउन तेरा
शुक्र है कि तू कहता है कि आसमान के परिंदों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता, उनकी जरूरत को पूरा करता है। बाप तेरे शुक्रगुजार है, तू कहता है कि तुम्हारी कदर तो उनसे भी ज्यादा है, उनसे कहीं ज्यादा है। तेरा शुक्रगुजार है कि तुम्हारा ऐसा हमारा खुदा है जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो अब हम अपनी सारी फिक्र रूहानी, जिस्मानी, एजुकेशनली, फाइनेंशियली बाप जरूरियात हम सब बाप तुझे देते हैं। तू ले इनको बाप, तू इनको पूरा कर और हमें उस गज़बे इलाही से तू हमें बचा ले यीशु मसीह के नाम से बाप। हमें उस गजब के रोह से तू हमें बचाए रखना है बाप। तू हमें बचाएगा तो हम देंगे, तू हमें छुड़ाएगा तो हम छुड़ाए जाएंगे। और यस फादर गॉड हालेलुया, तू इन पर निगाह रखेगा तो बाप हम बाप बचाए जाएंगे। यस फादर गॉड तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ओ माय लॉर्ड तेरा शुक्र हो। यस यस फादर गॉड तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड तू अपना रहम और करम वाला हाथ बढ़ाए रखना पूरे ग्रुप के साथ, पूरे ग्रुप की बड़ी मदद निगरानी कर। तो सारा फिल्म किस्सा आसमानी डाउन द साइड दर्द पर यीशु के नाम से करते हैं और अपनी रुचि के सर को छोड़े और मुकम्मल आजाद की जाए। दर्द को यीशु के नाम से दूर रखते हैं, दर्द को बाइंड करते हैं, हम दुश्मन के जोर को बाइंड करते हैं, कमाल करते हैं अपने कदम पीछे यीशु के नाम से बाबा मुकम्मल तौर पर आजाद हो बाप। दर्द जाता है यीशु के नाम से, हम उसे हुक्म देते हैं कि छोड़ इस बदन को, छोड़ इस सर को। ये सर के लिए यीशु ने अपने सर पर कांटे का ताज रखवाया है, वो आजाद है यीशु के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड हालेलुया, इस सर की दर्द से मुकम्मल तौर पर आजाद है वो यीशु के नाम से बाप। यीशु के नाम से यीशु ने अपने कांटों का जो ताज था वो सर पर रखवाया है। और यस यस फादर गॉड हालेलुया, रोज रजीरी दी शिंदे बेरजीरी प्रेज द लॉर्ड, अपने बच्चे को शिफा दे, मुकम्मल तौर पर बहाल कर, आजाद कर यीशु के नाम पर। तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब हम सब मिलकर अब तेरे यीशु नाम में तेरे हुजूर में हाजिर होते हैं। खुदाए रूह कुदूस, खुदाए पाक रूह, खुदाए सलूस है बाप, तान हम रोमा को रूह बदन जान में तेरे हाथ में दे देते हैं। खुदा बाप सब मिलकर अब आप खुदा उस बच्ची को खुदा तेरे रूह के हसार में दे देते हैं। खुदा तेरे कलाम के वादे में दिए देते हैं। अब आप यीशु के नाम से, जैसे तूने कहा कि जहाँ तेरे पांव तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। अब आप तू कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। सच्चा और आदिल है हमारा ईमान है। सो खुदा रोमा के साथ अब आप उसकी रूह बदल तेरे आने तक अब आप महफूज रहे तेरे खून में, तेरे कलाम में, तेरे हाथों में महफूज रहे। जब वो तैयारी कर रही है खुदावन तेरे कलाम के प्रचार के लिए, खुदावन तेरी मुनादी के लिए, खुदावन जो तूने हुक्म दिया कि जाओ पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी करो और कुछ लोगों को आजाद करो। ओ यस लॉर्ड हालेलुया, कैदियों को आई दो, अंधों को बिनाई दो। और यस हालेलुया, और खुदावन के नाम की मुनादी करो, उसके दिन की बिशारत दो। और यीशु के नाम से तो अपनी बंदी को खुदावन तैयार कर इस बात के लिए उसको मौका कर रहा है अपना प्रचार देने के लिए, सलीब के लिए बाप तेरे गहरे बेट तेरी बच्ची पर खुले रहे बाप। सारे प्लान पर तेरे कलाम की मोहर करते हैं, तेरे लहू की मोहर करते हैं यीशु के नाम में बाप। तो अपनी बंदी की तमाम जरूरियात को जो खुदा हम अभी से तेरे हाथ में दे देते हैं, तो उन हर तरह की जरूरत है बाप, जिस्मानी रूहानी बाप, फाइनेंशियली जरूरियात है बाप, तो अभी से बाप उस सारे पीरियड के लिए हम उन खुले दरवाजों को देखते हैं, ईमान से देखते हैं यीशु के नाम से बाप। हालेलुया, यस माय लॉर्ड हालेलुया, हम ईमान की आंखों से खुले दरवाजों को देखते हैं बाप रोमा के लिए यीशु के नाम से बाप। हालेलुया, तूने खुद कहा है कि ना झोली लेना ना कुर्ता लेना, और यीशु के नाम से बाप, और क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है बाप। हालेलुया, वंडरफुल, और तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से बाप। तू प्रोवाइडर है, तू दान मुहैया करता है, तू यहोवा यरी है, और
खुदावन तू मुहैया करता है, तू अपने लोगों के लिए खुदावन इस तरह से मुहैया, इस तरह से खुदावन तू काम करता है, तू उन चीजों को जो मौजूद नहीं है तू ऐसे बुला लेता है कि गोया वो मौजूद हो। तू अपनी खुदावन तू ऐसे ही है बाप, उसके लिए अपने खुदावन कामों को करना, अपने जलाली कामों को करना यीशु मसीह के नाम से बाप। और यस यस लॉर्ड हालेलुया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड, अपना हाथ बढ़ा, अपना जलाली हाथ बढ़ा। अभी से बाप हम सारा प्लान, सारे प्लान का बाप तेरी मर्जी में दे देते हैं, तेरे हाथों में देते हैं। दान तेरी पूरी का बात, दान तेरी बच्ची की, दान तेरी बच्ची के गिर्द रहे बाप, जिसका कौम बनी इस्राएल के साथ, दान आग के सून में, दान बादल के सून में, दान तूने अपने कौम बनी इस्राएल की हिफाजत करने के बानी की। इसी तरह इसके सारे इस प्रोग्राम में तेरे नाम को जला देने के लिए है दामन, तू शामिल हाल रहना और तू अब संभाल और बड़ी मदद कर। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। दान हम सब ने मिलकर दामन तेरी बंदी को बरकत दी है। तू कहते हैं कि इस्राएल को यूं किया करो और खुदावन अपने चेहरे का नूर तुझ पर जलवा कर फरमाए। हम सब मिलकर दान रोमा को कहते हैं कि खुदावन अपने चेहरे का नूर तुझ पर जलवा कर फरमाए, तुझको बड़ी अपने दरवाजों को खोल दे, नया औरतों को हमार कर दे, बंद दरवाजों को खोल कर चला जाए और यीशु के नाम से बाप हालेलुया। तेरा शुक्र इसके नाम से को पाक कर प्यूरिफाई कर, दान जो भी हाथों में दान है बाप, कोई भी है जो भी ऐसा दान कोई प्रॉब्लम है वो तेरे यीशु नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से। अपने बच्ची के दरवाजे खोल है बाप, तेरी बंदी काम करने वाली नहीं, काम करवाने वाली हो बाप, कि जहाँ जहाँ तुम नहीं इन द नेम ऑफ जमीन अपना हासिल देना शुरू कर दे इसके लिए बाप। और यीशु के नाम से बाप, आसमान भी अपने दरवाजे, अपने दरीचे खोल दे यीशु के नाम से बाप इसके लिए। यस हालेलुया, यस यस फादर गॉड हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र अदा करते हैं हम साज बाप। रोमा की जिंदगी इसके सारी खिदमत से तेरे यीशु नाम को देते हैं। बच्ची बड़ी संभालना, बड़ा उसको खुदावंद उसकी हिफाजत होने के बानी करना, तेरे फरिश्ते उसको प्रोटेक्ट करे बाप, तेरे फरिश्ते उसकी हिफाजत करें, जैसा कि तू कहता है खुदावंद से खुदावंद करने वालों से कुछ सारी खिदमत में तेरे फरिश्ते उसके साथ मूव करते रहे, तेरे फरिश्ते उसके साथ मशरिक मगरिब शुमाल तैनात रहे के नाम से बाप। यस लॉर्ड हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। ये सब हैं उसी तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कादर नाम में आमीन आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता है। आमीन। God bless you. bless you too. आमीन। गॉड ब्लेस यू टू। आमीन। मैंने खुदा की हजूरी को अपने ग्रुप के ऊपर बड़ी इस तरह देखा, पहले इससे देखा जैसे जैसे ऊपर शावर जैसा बना होता है, लाइक आप कह लें जैसे, तो वो पानी एक जैसे हमारे ऊपर आया है और साइडों पर मैंने देखा है जैसे वाइट रोशनी जैसी है। तो खुदावंद हमें पाक और साफ कर रहा है, जहाँ कहीं भी हम हमारी अभी तक जैसे कह लें जिंदगियों में है। तो खुदावंद उस जो दिन है, जो रोज़े अजीम सॉरी ज़हूर कहा गया है, यानी खुदावंद यीशु मसीह का जो बादलों पे आएगा रैप्चर को, खुदावंद हमें तैयार कर रहा है। और मैंने आग देखी है, यानी जो पाक आग है खुदावंद की, जो हमें पाक बनाने के लिए आती है। मैंने उस आग को देखा है, ऐसे जैसे कोई ऐसे जैसे बोलते हैं जो बर्तन जैसा है, जो बना हुआ है जैसे मर्तबान जैसे जैसा होता है ना, उसके जरिए से हमारे ऊपर वो आग जो है वो डेली जा रही है। तो खुदावंद जो है हमें जैसे हम कहते हैं कि जो यही वो हम कहते हैं ना, बेदी पे आग बुझनी नहीं चाहिए, तो असल में यही आग है जो पाक रूह की आग है, यानी हमारा दिल का जो बेदी है उसमें आग जलती रहनी चाहिए। तो खुदा ने आज वो आग जो है हमारे
दिलों में लगा दी है, इसलिए इस आग को बुझने ना देना कभी भी, आमीन। क्योंकि इसी आग ने हमें पाक साफ करना है, तैयार करना है। तो यस प्रेज गॉड जी। अगर और किसी ने कुछ कहना तो किसी को खुदा ने टच किया है या बोला हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके जी। ठीक है फिर जी, गुड नाइट जी सारा ना, प्रेज गॉड। गुड नाइट।